चलें अभी आज का लेक्चर हमारा जो है ना डीजल जनरेटर पे है, डीजल इंजन पावर प्लांट। ठीक है, तो अल्टरनेटर का अगर प्राइम मूवर हमारा डीजल हो, डीजल डीजल इंजन हो तो इसको हम कहेंगे डीजल इंजन पावर प्लांट। तो इसके अंदर देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीजल इंजन है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीजल इंजन है, साइज एंड डायमेंशन। तो ये सारे हमने डीजल इंजन के हवाले से पढ़ना है। एक ही लेक्चर है, इसमें कवर हो जाएगा आज, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो गैस टर्बाइंस पे है, और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट टू न्यूक्लियर पे है, और उसके बाद बाकी सोलर विंड पे जाएंगे। तो अभी लेट स्टार्ट, इसको करते हैं। जितना हो गया ये मैं शेयर कर दूंगा, ये वाली भी, ये जो लेक्चर नोट्स हैं, तो इसको मैं उधर ही अपलोड कर दूंगा, उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अच्छा, अब इसमें डीजल जनरेटर के हवाले से ये लिखा हुआ है कि डीजल जनरेटर आल्सो नोन एज डीजल जेनसेट, कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये डीजल किस नाम से है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये कंबस्शन इंजन का जो प्रोसेस है उसको उसने डिस्कवर किया था, और उसकी वजह से ये उनका नाम है। अब इसके अंदर अगर देखें तो कंप्रेशन जो है आपकी, इसमें दो तरह की होती है इग्निशन। अब पहले तो ये ना कि आप देखें डीजल इंजन है, डीजल इंजन के आगे डीजल जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस, कूलिंग, इनलेट, वो सारा हम पार्ट्स पढ़ते हैं अभी। तो बल्कि इसको ना मैं थोड़ा सा आपको वीडियो पहले ही दिखाऊं, ताकि जो है ना थोड़ी सी वर्किंग का आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। हाँ, इधर से सिलेक्ट किए हैं कुछ जो मुझे Diesel power plant. When it comes down to generation of electricity, that is electric power, it is essential to rotate the rotor of an alternator by prime mover. This prime mover can be driven using different types of fuel. Diesel engine is one of the most popular methods as a prime mover for generating electricity. So, when prime mover of an alternator is diesel engine, then the power station is known as diesel power station. Let's take a look at the diesel power plant. The various subsystems of a diesel power plant are prime mover, starting system, lubrication system, exhaust system, cooling system, air intake system, and fuel system. So let's learn about each of the subsystems in a bit more detail. In a diesel power plant, prime mover is a 2-stroke or a 4-stroke multi-cylinder diesel engine. The starting system. Starting system provides the initial rotation to the engine shaft required to start the engine. Smaller units can safely be started manually by hand cranking. However, larger units use compressed air for starting purpose. Lubrication system. Lubrication system consists of lubricating oil tank, pump, filter, and oil cooler. Lubricating oil is drawn from the oil tank by the pump and is passed through filters to remove impurities. Oil coolers are also there to keep temperature of the oil as low as possible. Exhaust system, as the name suggests, leads the engine exhaust gases out to the atmosphere. A silencer is used to reduce noise level. Air intake system intakes the air and supplies it to the engine for fuel combustion. Its air filters remove dust from air before forwarding it to the engine. Air filters can be dry type, made up of wool or cloth. Fuel system. Fuel system consists of a storage tank or the main tank to store the fuel. The oil is pumped into the day tank via transfer pump. During the transfer, oil passes through the strainers or filters to remove solid impurities. Another pipe called as overflow pipe is available to connect the day tank to the main tank. It returns the oil from the day tank to the main tank in the event of oil overflows. Fuel injection pump injects the fuel from the day tank into the engine cylinder at a high pressure of about 100 bars. Cooling system. Cooling system is instrumental for the liquid cooling process. In this system,
cooling jackets are provided on the engine cylinder walls and head, through which the coolant is circulated. The heat is transferred from the cylinder walls to the coolant by the process of convection and conduction. The coolant heated during its passage through the cooling jackets is cooled while it passes through the air-cooled radiator. So this is how a diesel power plant works. Now let's go ahead and take a look at its advantages and disadvantages. Advantages. The plant layout is simple, which ensures quick. चलें ये थोड़ा सा था डीजल जनरेटर के हवाले से। देखिए हमने देखा फ्यूल सिस्टम था, एक मेन जो पार्ट्स थे इसके, फ्यूल सिस्टम है, ठीक है, फ्यूल इनटेक होगी, उसके बाद दूसरा एयर इनटेक करनी है, ऐसी है ना। तो डीजल इंजन के अंदर हमें फ्यूल भी चाहिए और डीजल इंजन के अंदर हमें एयर भी चाहिए। तो फ्यूल के लिए फ्यूल सिस्टम अलग है, ठीक है, उसके अंदर स्टोरेज टैंक है, फिर डे टैंक है, पहले बाहर स्टोरेज टैंक है जो आज हमने देखा भी है, मेरे ख्याल आपने नहीं। तो इसके बाद फिर उसके बाद फिर जो है उसके अंदर पंप, स्ट्रेनर, ठीक है, स्ट्रेनर भी लगा हुआ है इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए। तो ये सारा कुछ इसके अंदर प्रोसेस में आ जाएगा, ये पूरा फ्यूल का मैकेनिज्म होगा, फ्यूल इनपुट। इसी तरह एयर है, तो एयर के अंदर एयर फिल्टर होगा और फिर उसके बाद आपका जो है एयर इनटेक सिस्टम हो गया। एयर और फ्यूल कंबशन के लिए डीजल इंजन के लिए हमें चाहिए, ठीक। कंबशन के प्रोसेस फिर दो है कि आपका 4 स्ट्रोक होगा या 2 स्ट्रोक होगा, वो हम आगे फिनोमेना पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमें एयर और फ्यूल हमें। उसके बाद फिर जो है ना कूलिंग सिस्टम चाहिए, कूलिंग पूरा मैकेनिज्म है जिसके अंदर रेडिएटर और ये सारी चीजें होगी। और उसके बाद तीसरा क्या था, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम था। तो लुब्रिकेशन में क्या था कि आपने क्या था बोला कि आपने जो भी मूविंग पार्ट्स हैं उनकी लुब्रिकेशन करनी है, यानी उनको आपने फ्रिक्शन लेस करना है या लेस फ्रिक्शन आपने प्रोवाइड करनी है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम था। फिर चौथा और क्या Diesel था, power plant. और कौन सा था, When लुब्रिकेशन, एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट, फिर साइलेंसर और एग्जॉस्ट सिस्टम कि आपने जो बर्निंग हुई है और उसके बाद गैसेस को और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं या गैसेस के अंदर जो नाइट्रोजन और सल्फर और इस तरह कंटेंट्स हैं उनको आपने प्रोसेस करने के बाद आपने एग्जॉस्ट करना है। तो वो ये सारा प्रोसेस जो है वो इधर इसने बताया हुआ है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो दो तरह के 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक है जो कि अभी आपने देखने हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल में देखेंगे। फिर स्टार्टिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग के भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मोटर से भी स्टार्ट करते हैं या कंप्रेसर या डिफरेंट 2 3 4 टाइप्स हैं उसकी स्टार्टिंग की, वो उसकी टाइप्स भी हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट तो एग्जॉस्ट, ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया जिसके अंदर साइलेंसर भी आएगा। और उसके बाद फिर आप देखें एयर इनटेक भी हो गया हमारा। और ये जो फिल्टर लगे हुए हैं जो कि क्लॉथ और या वूल के बने हुए हैं, तो ये आप देखें रिमूव डस्ट फ्रॉम दी एयर, तो एयर फिल्टर हम यूज करते हैं। और इसी तरह फ्यूल टैंक या स्टोरेज टैंक और ट्रांसफर पंप के अंदर स्ट्रेनर्स लगे हुए हैं फ्यूल के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको खत्म करने के लिए। और ये डे वो टैंक, ये कौन से, इसका क्या नाम बताया इन्होंने, ये डे टैंक है। तो मेन स्टोरेज इधर होगी और इसमें जो डेली यूज होना है वो डे टैंक ये वाला होगा। और इससे जो है आपने अगर डे टैंक फुल हो जाए तो फिर ये आपका इसके बाद जो है वो आप देखें तो ओवरफ्लो हो जाए तो आपका ये इसको कहते हैं, इसका नाम क्या था, रिटर्निंग, क्या था इसका नाम, इस पाइप को क्या कहते हैं, जो ओवरफ्लो पाइप कह देंगे इसको। जो एक्स्ट्रा पाइप जब डे टैंक फुल हो जाएगा तो ये जो आपका फ्यूल है वो वापस इसमें आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए अगर आप फ्यूल इंजेक्शन पंप है, फ्यूल इंजेक्ट जो करना है वो आपका इसमें आ गया, ये सारा फ्यूल का सिस्टम ही हो जाएगा। उसके बाद कूलिंग सिस्टम है, देखें कूलिंग जो है आप देखें तो इसके अंदर आपकी जो वॉल्स है सिलेंडर से होता हुआ पानी, हॉट वाटर, फिर दोबारा आगे कूलिंग अपने हीट एक्सचेंजर होगा और हीट एक्सचेंजर के साथ कूलिंग टावर होगा बड़े प्लांट्स के अंदर। इधर तो हमारे सिर्फ हीट एक्सचेंजर यूज होता है, छोटा है जो कि जनरेटर। तो इस तरीके से हमारा जो है कूलिंग का प्रोसेस होगा। और उसके बाद अगर आप देखें बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आगे देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियो था डीजल जनरेटर पावर प्लांट्स। अब इसके अंदर देखें तो कैपेसिटी जो है आपकी अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैंने बताया ना दो तरह के यानी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। तो इसके अंदर जो डीजल इंजन भी होते हैं और पेट्रोल इंजन भी होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो इसके अंदर स्पार्किंग जो फिनोमेना होता है ना, स्पार्किंग, जो फ्यूल जो आपने इंजेक्ट करना है ना, वो कैसे करते हैं, एक के अंदर कंप्रेस्ड फिनोमेना है जो कि डीजल इंजन के अंदर है, कंप्रेशन के साथ होता है वो। और दूसरा जो इग्निशन का सिस्टम जो है वो उसका स्पार्क से होता है। तो ये फ्यूल के अंदर स्पार्क का फिनोमेना है जो कि स्पार्क का अलग से पढ़ेंगे हम। और जो डीजल इंजन है उसके अंदर आपका कंप्रेशन, या उसको कहेंगे CI भी कह देते हैं कंप्रेशन, और SI स्पार्क इंजन। तो अच्छा, उसके बाद देखिए अगर आप तो
टर्बो चार्जर। अब टर्बो चार्जर ये हमने इधर जनरेटर में फिजिकल भी देखेंगे। टर्बो चार्जर जो है वो आपका क्या करता है कि टर्बो चार्जर, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम देख लें। टर्बो चार्जर साइलेंसर के आगे लगा होगा, पहले साइलेंसर से पहले ये करेगा क्या कि जो हॉट गैसेस जाएंगी ना, एग्जॉस्ट होंगी, एग्जॉस्ट से पहले टर्बो चार्जर आपको वो हॉट गैसेस से भी एक्सट्रैक्ट करेगा हीट को, ठीक है। और उससे दो चीजें फायदा होता है, एक तो नॉकिंग नहीं होती, नॉकिंग का मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल जा रहा है, अभी बर्न ही नहीं हो रहा, और प्री इग्निशन गया कि इग्निशन पहले स्टार्ट हो गई है, फ्यूल ही नहीं गया। तो ये इस तरह के प्रोसेस से जो है वो हमें वो बच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके बाद 5 मेगावाट, वैसे 50 मेगावाट भी मैंने देखा है कि 50 मेगावाट तक भी इसकी कैपेसिटी है, यानी इसकी लिमिटेशन डिसएडवांटेज में अगर आप देखें डीजल जनरेटर के, इसका ये है कि इसकी कैपेसिटी की लिमिटेशन है। चाहे 5 मेगावाट है कुछ बुक्स में, वैसे हमारी बुक्स जो है इसमें 5 मेगावाट है, लेकिन जो मैंने एक जगह और देखा लेटेस्ट वो 50 मेगावाट तक भी वो लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना ये सारा। अब हम देखें इसके अंदर फिगर को, अगर हम देखें नीचे ये फिगर, अच्छा फिगर के अंदर अगर आप देखें तो इस फिगर को देखने के लिए ना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसकी वीडियो देखते हैं, उससे समझ आएगी। अच्छा फिगर में देखें, सिलेंडर इज द मेन बॉडी where indirect combustion of the fuel take place. Cylinder is stationary and the piston reciprocates inside it. ठीक है, सिलेंडर है और उसके बाद पूरा सिलेंडर है, और उसके बाद पिस्टन, ये जो पिस्टन मूवमेंट करेगी, ये सिलेंडर पूरा, इसके अंदर सिलेंडर होगा और उसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो पिस्टन होगा, ठीक है। पिस्टन फिर आगे देखें कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड से आगे जो है ना क्रैंक पिन है, फिर ये क्रैंक है, और क्रैंक से बाद फिर ये जैसे ही ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये रोटरी मोशन में ये क्रैंक शैफ्ट जो है, और ये सारा जो क्रैंक का फिनोमेना है ये रोटरी मोशन में मूवमेंट, यानी ऊपर जाएगा फिर प्रेस होगा ये नीचे, तो ये रोटेटिंग जो है ना इसका फिनोमेना पूरा वो समझाया हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मैं अभी इसको हम दोनों फिनोमेना समझते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के लिए। तो इसका मतलब है कि सिलेंडर जो है आपका, जो पिस्टन है, पिस्टन ऊपर नीचे इसकी जो टू एंड फ्रो या ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट है, उससे हमने रोटरी मोशन हमने, या रोटेटिंग मैकेनिकल रोटेशन जो है वो हमने अचीव किया, और इससे आगे फिर डेफिनेटली आगे हमारा जो है जनरेटर लगा होगा अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर से फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये स्पार्क प्लग है। अब ये जो स्पार्क प्लग है, यहाँ से फ्यूल हमने इंजेक्ट करना है, और उसमें फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, और साथ साथ जो स्पार्किंग का फिनोमेना है वो आपका दो तरह का होगा। डीजल इंजन में कंप्रेशन से ये फिनोमेना चलता है, जिसको हम कह देते हैं CI, कंप्रेशन इग्निशन, जो इग्निशन का प्रोसेस है। और जो आपके पेट्रोल इंजन होते हैं, जो कि घर में नॉर्मली घरों में पेट्रोल इंजन यूज होते हैं, घर के अंदर ज्यादातर हमारे पेट्रोल इंजन है, और जो आपके क्या नाम है, जो बड़े इंजन है वो सारे डीजल है, ठीक है। और दूसरा एक और भी है, फॉर एग्जाम्पल देखें 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक की जरा एग्जांपल आप भी दे सकते हैं मुझे कि क्या हो सकती है, कौन से वाला, यामा था, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक कौन सा था और 4 स्ट्रोक कौन सा है इसमें? 1 to 5 4 स्ट्रोक है, और 2 स्ट्रोक CT70, और यामे में कौन सा है? अच्छा कुछ यामे में पहले जो आते थे ना 2 स्ट्रोक भी आते थे, जिसमें लोड ज्यादा आप कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी कम होती है थोड़ी, और जो आपकी जो गैसेस है वो भी इमिट करता है। आप देखेंगे यामे जो है ना, जो धुआं छोड़ते थे ज्यादा, तो वो 2 स्ट्रोक थे, ठीक है। तो लेकिन उसपे लोड ज्यादा था, आप देखें जो लोगों ने ज्यादा लोड पीछे डाला होता था, तो प्रोसेस क्या होता है, कौन सा, हाँ कौन सा है, कौन सा, 6 स्ट्रोक भी वो यूज नहीं हुआ, किधर अभी किधर उसकी एप्लीकेशन है, बाहर ही है, अच्छा ठीक है, 6 स्ट्रोक भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारा स्ट्रोक का फिनोमेना। अब ये जो है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक TDC और एक इसके अंदर होगा TDC, और दूसरा है BDC होगा, ठीक है। क्या है ये टॉप डेड सेंटर है और बॉटम डेड सेंटर है, कि ये आपने पढ़ी हुई है चीजें, अच्छा जो पढ़ी हुई मुझे बता देना, उसको स्किप कर लेंगे, ठीक है। सारा पढ़ा, वेरी गुड। अच्छा चले, तो ये इसके अंदर यानी वो जो सिलेंडर की मूवमेंट है उसकी वो रेंज। तो अब हम इसको ना थोड़ा सा इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ वीडियो से समझते हैं बस, बाकी थ्योरी मैं आपको थोड़ा सा बताते जाता हूँ, जो आपने पढ़ी मुझे बता देना।
अच्छा, अब वो वीडियो देखने से पहले हम क्लासिफिकेशन कर लें। पहले इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की, आईसी इंजन्स की क्लासिफिकेशन क्या है। अब क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मेथड्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स पे इसको क्लासिफाइड किया है। फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ इग्निशन की बेस पे क्लासिफाई किया है कि आपकी जो व्हाट इज द मेथड ऑफ इग्निशन। ओके, सो द मेथड ऑफ इग्निशन जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इग्निशन, दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन्स एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। ठीक है, तो ये ठीक है ना। स्पार्क इग्निशन इंजन आर एक्चुअली पेट्रोल इंजन है, और जो कंप्रेशन इंजन है इग्निशन वो डीजल है। इनका फिनोमेना पता है? स्पार्क इग्निशन में कैसे प्रोसेस क्या होता है इसमें? स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और दूसरे में जो कंप्रेशन इग्निशन में हाँ, तो वो जब एयर कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस एयर का ही टेम्परेचर राइज होता है। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये कंप्रेशन इग्निशन हो गया। ये चले हो गया, ये सारा हमें बस चीजें बताते जाइएगा जो आपको पता है। इसका दूसरा टाइप है साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो साइकिल ऑफ ऑपरेशन में 2 स्ट्रोक हो सकते हैं या बेस्ड 4 स्ट्रोक हो सकते हैं। ठीक है, वी प्रोसेस जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक है, थोड़ा सा कंपैरिजन मुझे बताएं इनका क्या फायदा है कि किस तरह, थोड़ा सा बताएं आपको। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? 4 स्ट्रोक की। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है ज्यादातर 4 स्ट्रोक की तरफ ही है ना सारे। डेवलपिंग में कुछ हो सकता है 2 स्ट्रोक यूज हो रहा है। पावर कम है, पावर इसमें 2 स्ट्रोक में ज्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब जहां एप्लीकेशन किधर हम यूज कर सकते हैं, 2 स्ट्रोक किधर यूज करना चाहिए और 4 स्ट्रोक किधर करना चाहिए। हाँ, यानी जहां ज्यादा पावर चाहिए वहां 2 स्ट्रोक कर सकते हैं। और हमारे जो घरों में होते हैं वो 2 स्ट्रोक है 4 है? अभी तो मैं 4 ही है ना सारे। ठीक, और लेकिन वो पेट्रोल है और बड़े जो डीजल। अच्छा, उसके बाद देखें चलें ये प्रोसेस। अच्छा, स्केवेंजिंग क्या होता है? स्केवेंजिंग ये प्रोसेस है, ये सुना हुआ पहले आपने पढ़ा उसमें, ये क्या होता है? हाँ, एयर फ्यूल मिक्सिंग मिक्सिंग का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम जो है वो। अच्छा, इसके बाद देखें तीसरी इसकी जो अगर हम टाइप इसको अपने कैटेगराइज करें तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिलेंडर्स। सिंगल सिलेंडर एंड मल्टी। मल्टी आता है तो जुबैर इज सेइंग दैट मल्टी सिलेंडर इज 6, नहीं आपने स्ट्रोक का कहा था। अच्छा, 6 स्ट्रोक कहा था आपने। अच्छा, वो और चीज है, मल्टी सिलेंडर भी यूज होते हैं। ठीक है, मल्टी सिलेंडर तो नॉर्मल है ना, 4 स्ट्रोक भी है, उसमें मल्टीपल सिलेंडर्स आप यूज कर सकते हैं। सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर, दिस इज अनदर कैटेगरी। एंड द फोर्थ वन इज अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स। What's the arrangement? Inline, V line, radial, horizontal, different types of cylinders arrangement are there. And the next category classification जो है, it depends on the speed. For example, low speed, medium or high. The range is given. And the next one is method of cooling and कूलिंग द सिलेंडर, उसमें एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड है। और द नेक्स्ट इज कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, वेदर इट्स स्टेशनरी, मोबाइल, मूवेबल, और यू कैन से फॉर स्पेशल और इमरजेंसी पर्पस। ठीक है, अच्छा ये सारी कैटेगरीज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम देख चलते हैं जो कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, जो थी क्या नाम है, डिपेंडिंग ऑन साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो नो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हम देखते हैं। तो जी, कौन सा होता है? कौन सा होता है, आपने पढ़ा है कोई चीज? वर्टिकल वी टाइप होता है। वी टाइप ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, ठीक है। फिर कुछ समझ आई इनकी क्वेश्चन? हाँ, उसका इसके साथ लिंक है कोई? क्या लिंक है? बताया ना, दोबारा बता देना, आंसर बता देना क्या है। हाँ, 8 सिलेंडर है उसमें। ठीक, 8 सिलेंडर और V8 में। ठीक हो गया, सही। और इसके अलावा किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इसके अलावा? ठीक है, चले आज इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखें। अगर आप 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक के अंदर देखें ऑपरेशन अब 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट हो रहा है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर। और यही काम जो 2 स्ट्रोक के अंदर का कितने में होगा?
एक में एक रेगुलेशन में होगा, ठीक है। और इसके अंदर 4 स्ट्रोक्स है, पहली सक्शन है या इनटेक कह देंगे इसको, और दूसरी कौन सी है, कंप्रेशन होगी, ठीक है। तीसरी एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक भी कहेंगे इसको, और आखिरी जो है वो कौन सी है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको देखना है फिगर से, फिगर से आप जरा मुझे समझाएं कि कैसे है, जरा नहीं तो मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये प्रोसेस है। आप ये ए बी सी, फर्स्ट ये इनटेक है, एयर इनटेक। अब इसमें देखिए आई वी ओपन, आई वी क्या चीज है, इनटेक वाल्व, और ई वी क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो इनटेक वाल्व ओपन ओपन हो गया, एयर इन हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, हाँ एयर आ गई है, जैसी एयर आई ये नीचे चला गया। अब कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेस करेगा, ये ऊपर को जाएगा सिलेंडर, ये देखिए ऊपर चला गया, कंप्रेस हुआ। अच्छा, कंप्रेस के अंदर ये दोनों वाल्व बंद है, ठीक है, कंप्रेशन हो गई है। जैसी कंप्रेशन हुई तो अब इसके अंदर दोबारा आईवी और ईवी क्लोज है, ऐसी है ना। अब क्या होगा, यहाँ यहाँ इग्निशन स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर वो होगा आपका, वो स्पार्क वाला होगा तो क्या करेगा, स्पार्क करेगा। और कंप्रेशन में क्या होगा, क्यों है? तो कंप्रेशन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जैसे ही आप फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो वो आग बढ़ी। अब इसके अंदर इसको वर्किंग स्ट्रोक कहें या पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम क्या था, कौन सा था, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन या वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। अच्छा, उसके बाद चौथा क्या होगा, जब पावर स्ट्रोक लग गया उसके बाद फिर दोबारा ये जो एग्जॉस्ट गैसेज है इनको हमने आउट करना है, जिसमें देखें तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा फिनोमिना है इसके अंदर, ये 4 स्ट्रोक का फिनोमिना है। 2 स्ट्रोक में क्या फर्क होगा, हाँ पहले स्ट्रोक में क्या होगा, मतलब वेरी गुड, एयर इनटेक कंप्रेशन इकट्ठी होगी, सही है। और दूसरा वर्किंग और एग्जॉस्ट जो है वो इकट्ठा फिनोमिना होगा, ठीक। अच्छा, ये हमारा हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये फिनोमेना, ये कर्व आपने पढ़ी है पहले, ये बताया जरा, समझा दें मुझे कैसे। ए बी क्या है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, कौन सी है ये, कौन सी होगी, पहला वाला चेक कर लें, ए बी, जी जी, ओ सॉरी, शुक्रिया। अच्छा, so line AB is indicator diagram represent this stroke, suction stroke. This is the intake or the suction stroke. Air is sucked into the cylinder, and that is actually AB, this one. लेकिन इसमें वॉल्यूम, why volume is reduced? When air is hmm? वॉल्यूम a little volume reduction is occurred. अच्छा, उसके बाद देखें, from A to B to C, this is compression, and compression में you can see here when compression is there, volume will be reduced and pressure increases. And CD, why CD pressure is constant, volume is increased, because when compression बिफोर थर्ड साइकिल, यानी ये जो आपका CD है, जो कि एक्सपेंशन है ना, ये CD एक्सपेंशन ही होगी ना, CD एक्सपेंशन ही है ना। तो एक्सपेंशन में देखें अगर आप, CD एक्सपेंशन में, और फ्यूल बर्निंग ऑपरेशन, CD रिप्रेजेंट्स द फ्यूल बर्निंग ऑपरेशन। तो जैसे फ्यूल बर्न होगा तो आप यू विल सी दैट प्रेशर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम विल, क्योंकि आप फ्यूल बर्न होगा तो उसकी वजह से भी एक्सपेंशन होगी, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। एंड द नेक्स्ट वन, एक्सपेंशन स्ट्रोक इज रिप्रेजेंटेड बाय DE। तो DE क्या है, तो जब कंप्लीट एक्सपेंशन जो है वो अकर होगी, ये स्टार्टिंग थी उसकी, जैसे ही कंप्लीट एक्सपेंशन होगी तो दैट यू विल सी दैट प्रेशर इज रिड्यूस्ड because expansion is there and volume is increased. And then the last one, EA, is exhaust stroke. Why exhaust stroke? In exhaust stroke you will see that pressure is reduced and volume is increased, ऐसी है ना, a little, क्यों हुआ ये, क्यों सर,
एक्सपेंड, हाँ जो एग्जॉस्ट है, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा और वॉल्यूम एक्सपेंड कैसे होगा? गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा। कोई और बताएगा इसका? एनी वन अदर? लेकिन इधर कर्व में तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज शो किया हुआ है। वॉल्यूम कर्व में इट शोज दैट वॉल्यूम लिटिल वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। आपको है अच्छा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखें द नेक्स्ट वन इज टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन, ये कर्व ये पढ़ी है इस तरह, ये वाली आपने, हैव यू स्टडीड दिस वन? अच्छा ठीक। टू स्ट्रोक इंजन, इसके अंदर भी देखें तो प्रोसेस वही है। एफ ईवीसी क्या है? व्हाट इज ईवीसी? आईडीसी, व्हाट इज आईडीसी? इंटरनल डेड इंटरनल डेड सेंटर और ये आउटर डेड सेंटर, ठीक है। एंड सक्शन, ये द सेम प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सक्शन, this one, then compression. In suction you will see inlet valve is open, IV open लिखा हुआ है suction, and then there is a IV closed, here is IV closed, and then you will see compression, and compression then FVO क्या है? Fuel valve open. In compression, fuel valve, after compression you will see in the end of compression fuel valve will be open, and fuel valve open, fuel will be injected depending on ignition, whether ignition is spark or compressed, and then there is a fuel valve closed. This is a little process for the whole part of the expansion cycle, third cycle. Only a few starting part fuel valve will be open for this, and then there is an expansion. In the end of expansion there is ये क्या है? Exhaust valve will be opened, and then gases will be exhausted. This is the whole cycle. And now the two stroke engine. In two stroke engine you see the same process as repeated here, and here the same phenomena will be in simple we can say the same phenomena will be covered in one rotation. Okay, so that's what the scenario. And now we'll see one video where force या भी थोड़ा सा रोक जाए, हम जरा जल्दी कवर कर लेंगे, आप मुझे जरा थोड़ा बताते जाएं। आप देखें इसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहे हैं ना। अगर हम देखें तो ये सारी चीजें, क्रैंक केस है, नीचे क्रैंक केस है जिसके अंदर नीचे सपोर्ट है, क्रैंक शाफ्ट वेब आपको नजर आ रही है, ऊपर देखें तो फ्यूल, दैट इज द फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर नोजल है, दैट इज द एंड, इन द एंड ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, कैम ऑपरेटेड बाय कैम शाफ्ट, ये आपका है सिलेंडर हेड है। तो ये ऑल फिनोमेना इज क्रैंक शाफ्ट, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, एंड इसके बाद आपके टॉप डेड सेंटर और होता है एग्जॉस्ट फिनोमेना होता है। अब सबसे पहला इनटेक या सक्शन स्ट्रोक है, ठीक है। इसमें देखें ये टॉप डेड एंड है, बॉटम, ये पूरा प्रोसेस के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना है कि एग्जॉस्ट ये इनटेक वाल्व है, अब कैम शाफ्ट से करते हैं, वही तरह वाला है। देखिए ये आप इनटेक हो रही है, ठीक है। फर्स्ट साइकिल
ये जो फ्यूल के डेफिनेटली फ्यूल के जो मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब करेंगे हीट, और जैसे ही हीट अब्जॉर्ब करेंगे तो कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये कंबस्शन स्टार्ट हो गई है। ये आपकी और एक्सपेंड हो रहा है अच्छी लोग। Here you can see crank shaft, the rotate the perceived movement से you will see the rotational motion is converted into rotational motion. फिर उसके बाद exhaust होता है, you see here that गैस जो है वो आपकी कार्बन मोनो, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ये देखिए बनाने के लिए या एनवायरमेंटल बनाने के लिए वो पूरे प्रोसेस क्या होता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब यही फिनोमेना अगर आप देखें इसी फिनोमेना को हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। ये देखें इनटेक आई, अब कंप्रेशन स्ट्रोक है, कंप्रेशन में देखें द इनटेक वाल्व, ये तो हम पढ़ लिया अभी, कंप्रेस हुआ और उसके बाद फिर स्पार्क जस्ट बिफोर, ये स्पार्क अगर हुआ, ये वो स्पार्किंग का फिनोमेना, पेट्रोल के लिए स्पार्क होगा और दूसरे के लिए, तो एग्जॉस्ट के अंदर जो है आपका, ठीक है, ये फिनोमेना है। अच्छा इसके बाद देखें अब हम यही चीज टू स्ट्रोक की देखते हैं। Example in go-karts. क्या पढ़ा उधर, पढ़े हैं ना, उधर जरा आप पता करना ना कि टीचर कौन है, मैं उनसे रब्ता करके हम लैब को लेके जाएंगे, ठीक है, वो जरा अच्छा वो हमें ज्यादा गाइड कर देंगे मैकेनिकल का फिनोमेना, ठीक है। There are also a spark plug as well as construction is similar. The construction is similar to four-stroke engines. The two-stroke engine has one piston. The crankcase is used for the gas exchange. There are also a spark plug as well as intake and exhaust ports. A crucial difference is the presence of the transfer port. Let's take a close मेन पॉइंट ट्रांसफर पोर्ट का है कि जिसकी वजह से दो प्रोसेस इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर पोर्ट से आप देखें closer look at the individual strokes. In the first stroke cycle, a fresh fuel-air mixture is drawn in via the intake port. It is shown here in red. It is added to the existing mixture in the crankcase. At the same time, the mixture is compressed in the combustion chamber and finally ignited by the spark plug. The second cycle starts. The hot air expands and presses the piston downwards, reducing the volume of the crankcase. Because of that, the mixture is forced into the combustion chamber. At the same time, the volume reduction in the crankcase can be very easily explained using small spheres. The spheres represent the fresh mixture. The mixture is sucked into the crankcase through the piston moving upwards. When the piston then moves downwards, no additional fresh mixture flows in and compression takes place because the volume of the crankcase is decreased. As a result, the fresh mixture makes its way into the combustion कंप्रेशन भी होगी क्योंकि इनटेक से आपको इसको नीचे से आप प्रेशराइज कर रहे हैं और उससे जो है वो आपका जो कंप्रेशन है वो भी chamber via the transfer port. The engine shown here operates according to the principle of cross-flow scavenging. ये वेबसाइट का YouTube पे मैंने क्या वेबसाइट है YouTube से डाउनलोड Intake and exhaust port are on opposite sides. हाँ दोबारा बताएं, एग्जॉस्ट होता है वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपने इसका मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, टू स्ट्रोक होगा उसमें, फिर उसका ये फिर
फिर इसका मतलब है कि वो ये प्रोसेस फिर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों में होगा फिर तो, ये तो क्योंकि वो जो यामा था जो धुआं निकालता था वो 2 स्ट्रोक था ना, इसका वो भी इसी तरह करता था, मतलब कि ये फिनोमेना फिर दोनों में वो हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं। ठीक, sides. चलें ये आपको हो गया। अच्छा उसके बाद आगे चलते, ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का था ना। अब एप्लीकेशन देखें अगर तो डेफिनेटली स्टेशनरी प्लांट्स हैं, मैरीन और ये वेरियस व्हीकल्स, और जिस तरह ये इन्होंने V8 बताया क्यों सर V8 और क्या है और कौन सी कहाँ यूज हो रही है, V10 12 कहाँ तक चली गई है पाकिस्तान में, कहाँ तक है V10 तक है, और बाहर बाहर कहाँ तक है 12 तक है। ठीक, तो ये उधर यूज हो रही है। अच्छा उसके बाद देखें तो एप्लीकेशन में ये तो ठीक है, ये वाला यूज होते हैं, और इसमें पीक लोड प्लांट, मोबाइल स्टैंड बाई इमरजेंसी, नर्सरी के भी एक टाउन में आपने उसको सप्लाई दी, और जैसे ही उधर उस टाउन में कोई ग्रिड लग गया तो आप उसको कहीं और मूव कर दें, तो ये नर्सरी स्टेशंस है। स्टार्टिंग स्टेशंस भी हैं, स्टार्टिंग में देखें तो ये आपने जो वेबिनार हुआ था फ्यूल में, उसमें उन्होंने बताया था डिटेल से, ये FDID फैंस, ये कौन से थे भला, कौन से FD से क्या बनता है? नहीं नहीं, हाँ फोर्स डार्ट और इंड्यूस्ड डार्ट, एक इंड्यूस्ड डार्ट था इनपुट साइड पे था, और एक फोर्स या उसको फिर वायर फोर्स करता है। और BFP क्या है, ये बॉयलर का पंप था, बॉयलर फीड पंप, ठीक है। तो ये सारे जो पंप हैं ये उनको भी करने के लिए हम एज अ स्टार्टिंग स्टेशन के तौर पे उनको, और सेंट्रल स्टेशन के तौर पे भी हम इसको जहाँ रिक्वायरमेंट है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें IC इंटरनल कम्बस्शन टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी में देखें तो आपका ये जो आउटर डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये पढ़ा हुआ है, आप बता दें मुझे अगर है याद है तो। क्या है ये, क्या है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक की लेंथ है, समझे, मतलब ये कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद बाकी ये इसकी डेरिवेशन है, आप देखें अगर तो ये आपने किया था, कोई प्रॉब्लम भी किए हैं इनके, प्रॉब्लम किए थे। तो एरिया देखें, स्वेप्ट वॉल्यूम V1 जो स्वेप्ट वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे हम, वो होता है ना पाई R स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ होती है ना, एरिया इंटू लेंथ। तो स्ट्रोक की लेंथ, जो स्ट्रोक है ये लेंथ हो जाएगी L, और पाई R स्क्वायर है तो वो पाई पे 4D स्क्वायर हो जाएगा अगर डायमीटर गिवन हो, ठीक है। R जो है D/2 हो जाएगा। अच्छा इंजन की परफॉर्मेंस में देखें तो इंजन की परफॉर्मेंस के लिए हम ये जो है ना इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये कैसे निकालेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर, कैसे निकालेंगे? ये PM जो इसकी पावर है PM, ये हम निकालेंगे IMEP, ये IMEP भी इसका किसी चीज का एब्रीविएशन है, ये मेरे ख्याल ये एक है, ये प्रेशर, ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है P, और उसके बाद देखें L क्या है, स्ट्रोक की लेंथ हो गई, A क्या है, एरिया हो गया पिस्टन का, N क्या है, N नंबर ऑफ सिलेंडर्स हो गए। तो ये सिलेंडर जो जुबैर कह रहे हैं ना, नहीं ये वो नहीं, 6 सिलेंडर्स, ये 12 तक मल्टीपल सिलेंडर यूज होते हैं, ठीक, कितने हैं वैसे मैक्सिमम, 12 तक है। अच्छा और K जो है ना वो 1 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है तो 1, और 4 है तो 2, ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ब्रेक हार्स पावर है, ब्रेक हार्स पावर कैसे निकालेंगे, 2/NT/45, N जो है स्पीड है RPM में, और T जो है टार्क है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। और फ्रिक्शनल हार्स पावर कैसे आएगी, ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। और इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी अगर आप देखें तो ये कैसे निकालेंगे, अगर हम IHP जो पहले हमने निकाली है, IHP किधर है, ये इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, और उसको हमने मल्टीप्लाई, ये फार्मूला है, ये इसकी डेरिवेशन मैंने इधर नहीं दिखाई, वो बुक में लिखी हुई है सारी, आउटपुट और जस्ट इनपुट है, ठीक है। इनपुट क्या है भला, W इंटू फ्यूल पर मिनट मल्टीप्लाई बाय एक फ्यूल की 1 kg की कैलोरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय J जॉल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी निकल आएगी। अच्छा ये जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है ये कौन सी थी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, और ब्रेक थर्मल, इनमें क्या फर्क होगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ये ओवरऑल एफिशिएंसी है, ये कैसे निकलेगी, आउटपुट और इनपुट तो सेम है, आउटपुट में फर्क है, ऐसे ही ना, क्यों है भला, ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है तो आपकी IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर आपने टू द इंजन कैन बी कैलकुलेटेड। और उसके बाद देखिए अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में BH भी लिया है आपने, BH क्या चीज है, ब्रेक हॉर्स पावर इज द डिफाइंड एज द नेट पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट,
यानी लॉस के बाद आप समझे कि ये BH होगी, और BH देखें तो उसके बाद आपकी फ्रिक्शन लॉस, ये देखें दोनों का डिफरेंस है। तो BH आपकी नेट है, और नेट आप निकालेंगे तो फिर ये ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी आउटपुट आप लेंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी कैसे आएगी, BHP और IHP से आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद हीट बैलेंस शीट है। अब हीट बैलेंस शीट के अंदर देखें तो ये इसमें सारी एग्जांपल्स आती हैं। हीट बैलेंस शीट जिस तरह पिछली हमने स्ट्रीम में पढ़ा था, वो कौन सी शीट थी भला? अब हीट बैलेंस शीट थी, उसके अंदर क्या था, डिफरेंट लॉसेस और पूरा उसका जो है ना ओवरऑल सिनेरियो पता चल जाता है। इसमें भी यही पता चला है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो हम किसी थ्योरी से एग्जांपल्स उसके साथ वो शामिल हो जाएंगी। अच्छा, डीजल पावर प्लांट ऑक्सिलरीज। अब ये ऑक्सिलरीज हैं जो कि हमने थोड़ा सा उसको देखा है। शुरू में इंजन है, मेन पार्ट है, ठीक है, और उसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, मेन फ्यूल टैंक हो गया, और उससे फिर आगे स्ट्रेनर्स और सारा वो प्रोसेस आगे डे टैंक हो गया, डे टैंक के बाद फिर पंप भी लगे होंगे, पूरा प्रोसेस का वो उसके अंदर होगा, और उसको सप्लाई करना है तो वो। अच्छा, उसके बाद देखें तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ये कुछ पैरामीटर, जिस तरह फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है, और क्या है, और उसके बाद मीटर और रेगुलेट द फ्यूल, और ये सिक्योर, ये सारा प्रोसेस के अंदर है, ठीक है। तो ये पूरा उसने लिखा भी हुआ है यहाँ, फिजिकल भी हमने उसको देखा है और वीडियो में देखा है ये। अच्छा, उसके बाद देखें एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। जल्दी खत्म कर देंगे क्या, मास पढ़ लेते क्या यहाँ पढ़ है हाँ तुसी कर ली जमा आप बैठे। एयर इनटेक जिसने पढ़नी है पढ़े, मसला नहीं। एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है, एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। जरा जल्दी जल्दी बताया मुझे साथ साथ, ताकि हम इसको वो कंप्लीट कर लें। ये क्या है, तीसरा एयर इनटेक, इसके अंदर एयर फिल्टर होगा और एयर इनटेक के लिए पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, और एग्जॉस्ट सिस्टम इसके अंदर सारा, ये दोनों अलग अलग हैं। तो क्लीन करना है हमने एयर को टू साइलेंस द इनटेक एयर और सप्लाई एयर फॉर सुपर चार्जिंग, और ये पूरा उसका प्रोसेस बताया हुआ है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखें तो कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग के अंदर क्या होगा, हमने कूलिंग के अंदर वो कौन सी टाइप थी, दो, एयर कूल और वाटर कूल, दो तरह की टाइप्स आएंगी। और छोटे, ये जरा हमारे डीजल 500 256 किलोवाट का एक जनरेटर है, तो इसके अंदर आप देखें तो वो लगा हुआ है रेडिएटर, ठीक है। तो बड़े के अंदर क्या होगा फिर, वो आपने कूलिंग टैंक का वीडियो में देखे ना, बड़े बड़े वाटर कूल होगा, ठीक है। तो एयर कूल्ड क्या होगा, नेचुरल एयर कूल्ड भी हो सकता है, सही। तो अच्छा, इसके बाद देखिए लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। लुब्रिकेशन में क्या है कि ऑयल हम यूज करेंगे, एक तो डीजल इसका फ्यूल है, दूसरा लुब्रिकेशन के लिए अलग से ऑयल यूज होगा, ठीक है। तो वो लुब्रिकेशन सिस्टम होगा जिसके अंदर हम लुब्रिकेशन, ऑयल कूलर और फिल्टर और उसके पंप्स और पूरा एक प्रोसेस का वो यूज होगा। अच्छा, उसके बाद स्टार्टिंग सिस्टम है। स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, कैसे करेंगे, अब स्टार्टिंग देखें इलेक्ट्रिक मोटर से भी करते हैं, और कौन सी है, बैटरी है, और क्या है, कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है। और सेल्फ स्टार्टर भी, तो सेल्फ ही होता है, ये हमारा सेल्फ है, हम बैटरी लगाई हुई है 12, जब हम 12 दो बैटरीज, वी हैव कनेक्टेड टू, यार ये याद कराया, वी हैव कनेक्टेड टू बैटरीज इन सीरीज, सो 12 plus 12 is 24 volt, and here when we will conduct the lab, we'll go there in diesel engine power plant where we have two diesel engines, and one is 256 kilowatt and two is are definitely 512 kilowatt, and there you can say the self starter, or you can say electric motor. So electric DC motor is there, and DC motor is driven by battery, and battery is 24 volt. Two batteries, 12 plus 12 are in series, and a starter system, and compressed air is also possible. And let's have a look of how to start the motor, how the engine is started with motor, auto start or motor start. You will see here in this video. You will see. No start. An engine starter motor is a powerful electric motor. नहीं स्टार्टर क्या, इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टर जो आपने बताया था, इधर हमने देखा है कि सेल्फ स्टार्टर और इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टर, ठीक है, एक ही चीज है। और इसके अंदर दोबारा स्टार्ट करें, An engine starter motor is a गाड़ी के अंदर an engine हाँ, एक मिनट दोबारा स्टार्ट, कौन सी वाला, ये जो पूरा जो है ये कौन सा वाला सर,
ये जो इस तरह आगे पीछे जा रही है, ये वाली जो ये जो बड़ा है, क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, ये जो आपकी इसको मूव करने के लिए छोटी, इसको पिनियन कहते हैं ना, पिनियन, गियर, गियर है ना, सिंपल गियर कह लें बस, वैसे नाम इनके डिफरेंट है। ये छोटा सा ब्लैक वाला पिनियन है जो आगे पीछे जा रहा है ना, ये अभी थोड़ा पीछे जाएगा, ये देखें, ये देखिए, पहले इसको चलाया अब वापस चला गया, ऐसी है ना, ये ब्लैक वाला है ना ये, हाँ ये पिनियन है, पिनियन है। बस वो पिनियन क्या है कि आपकी वो उसको जो पावर है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। देखें ये ना हो अगर तो कैसे मूव करेगा ये, और इसके आगे फिर वो होगा, जनरेटर होगा। हाँ हाँ, दोबारा दोबारा, जी जी जी, पिस्टन को मूव करने के लिए तो हमने करना है। भी देखें ये जो शुरू में साइकिल है, हमने इनटेक के बाद कंप्रेशन, और कंप्रेशन ये बड़े तो नहीं कर सकते उसको, फिर ये मोटर चाहिए होगी, कंप्रेशन दोबारा फिर एक्सपेंशन, ये 2-4 साइकिल हमने करने हैं, जैसे कि ये फिर वो काम शुरू हो जाएगा, फिर ये निकल गया। वही तो करना है हमने, वो इतना जोर, हम छोटे जनरेटर में तो हम वो करते हैं ना उसको स्टार्ट, वो जो घर के जनरेटर होते हैं, हाँ किस तरह, मुझे क्वेश्चन पूछ रही है या आंसर कर रही है? जी जी बोलो बोले। हाँ वो स्ट्रोक्स मूव कर रहे हैं डेफिनेटली, स्ट्रोक्स और इसका आपस में लिंक है, देखें ना। और आगे जो ये बड़ा पिनियन के साथ इज कनेक्टेड दी बिग गियर, इसका नाम भी आएगा क्या है, इस गियर के साथ आगे फिर डेफिनेटली आगे जनरेटर होगा, और आगे ये सारी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो शुरू में देखें उनको चलाने के लिए हमने वो जो सिलेंडर्स हैं चारों स्ट्रोक्स जो हैं, तो उनको फिर ये मोटर हमें चाहिए क्योंकि हैवी होता है, बड़े जनरेटर्स में उसको हम ऐसे नहीं चला सकते। तो ये मोटर वाला फिनोमेना। अब आप देखें इसके अंदर ये भी आप ये बताएगा, अभी अगर समझ ना आई तो फिर मेरे से पूछना अभी। An engine starter motor is a अब powerful ये मोटर electric को आप motor डिफाइन used for करेंगे, ठीक cranking an है। engine. मोटर के अंदर आप देखें तो ये ऊपर सॉलिनॉइड, starter नीचे motor मोटर है। has a मोटर कौन सी होती है pinion. वैसे, कौन सी डीसी मोटर होती है क्यों जुबैर, या एसी होती है? बैटरी से लगी होती है, वेरी गुड, डीसी। और डीसी कौन सी होती है? डीसी में भी शंट है, सीरीज है, कंपाउंड है, कौन सी है? जिसका टॉर्क ज्यादा होगा वही होनी चाहिए ना, तो सीरीज होती है, सीरीज होती है। तो डीसी मोटर, ठीक है। अच्छा ये पिनियन है, ये बता भी दिया उसने, ठीक है। पिनियन आगे पीछे मूव कर रहा है, वो रीजन भी बताएगा। तो ये नीचे मोटर है, यूज सॉलिनॉइड है। अब सॉलिनॉइड क्यों यूज किया है, किसको मूव करने के? हाँ सॉलिनॉइड उसको भी मूव कर रहा है, पिनियन को भी, ये इट विल मूव द पिनियन। और क्या, सोलेनाइड जो है वो क्यों यूज किया है, क्योंकि हैवी करंट को हम स्विच के थ्रू, दिस मोटर नीड हैवी करंट फ्रॉम द बैटरी, सो उसके लिए सिंपल केबल जो है उसको हम स्विच के थ्रू गुजारेंगे तो स्विच इतना करंट विल नॉट हैंडल, तो सोलेनाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी ये बताएगा, which meshes with the teeth on the flywheel of the engine and turns the crankshaft. सोलेनाइड इज जस्ट, आप समझे रिले का, जिस तरह रिले काम करती है, रिले को वी कैन एनर्जाइज विद अ लो वोल्टेज एंड इट कैन हैंडल हैवी करंट लाइक दैट। The model shown here is a pre-engaged type starter motor used in modern vehicles. It uses an electric motor to provide torque to the crankshaft. ये मोटर है हमारी, The power for this motor can be drawn ये from the बैटरी है, और battery. बैटरी से अगर आप A देखें तो ये एक simplified छोटा सा circuit of स्विच है power जिससे हम supply सोलेनॉइड को shown एनर्जाइज here. करेंगे। The power from जैसे the एनर्जाइज battery is होगा तो supplied to a सोलेनॉइड का जो solenoid. प्लंजर है, ये An देखिए सोलेनॉइड ignition प्लंजर switch जो है is आगे installed चलेगा तो between ये the battery and इसका the करंट जो है वो solenoid to नीचे turn the power मोटर को, on and off. ये इग्निशन The स्विच इसको कहते हैं, solenoid ठीक is an है। जैसे electromagnet इग्निशन स्विच which देखें, इसको requires प्रेस small करेंगे current to get energized. तो As the ignition switch is turned on, the solenoid सोलेनॉइड gets समझो energized. इलेक्ट्रोमैग्नेट जिस तरह होता है A कि moving इलेक्ट्रिक करंट core, दे तो known as a मैग्नेट बनता है, plunger, ये जस्ट वही slides चीज है। along the प्लंजर देखें coil, प्रेस which हुआ, connects to जैसे हुआ two तो मोटर copper स्टार्ट होगी, ठीक है। terminals of a करंट बैटरी का contactor करंट switch. है कंडक्टर This का, completes इस the कंडक्टर circuit असल from the में battery to इससे the हैवी करंट motor होता है, तो and इसलिए हम causes स्विच the से rotor to इसको हैंडल spin. कर सकते हैं, दैट्स When व्हाई the वी solenoid is सोलेनॉइड। de-energized, the core returns अच्छा ये हो back गया। and अब इसके बाद disconnects देखिए the वो motor from the जैसे ही आप battery. इसे ऑफ करेंगे We may wonder why the तो ये solenoid आपका and प्लंजर the पीछे। contactor are अब used इसका instead of क्वेश्चन वही था directly कि ये देखिए connecting इसको the डायरेक्ट क्यों battery नहीं to कनेक्ट the कर दिया, motor and तो डायरेक्ट reducing the इसीलिए नहीं किया complexity कि at हमने the end इसको of आगे the चलते motor. ले जाते हैं, Current for कि डायरेक्ट हम operation. इसीलिए नहीं To किया handle कि this current, so हैवी करंट requires very स्विच जो है thick इसको हैंडल नहीं wires कर run सकता, convenient. इतनी This is इतना why बड़ा the solenoid कंडक्टर has भी another वो। crucial function. अब It इसके helps बाद to ये जो slide the सोलेनॉइड है इसका pinion दूसरा and फंक्शन engage ये it with पिनियन the है, flywheel कि before the जैसे ही motor आप starts to एनर्जाइज हो spin. जाएगा
तो As पिनियन the देखें pinion उसके slides साथ towards the flywheel, ये देखें it जैसे ही slightly एनर्जाइज होगा rotates on its axis, as shown here. तो पिनियन जो This है आगे rotation कनेक्टेड is है achieved by और using a एनर्जी ट्रांसफर होना helical शुरू होगी spline. रोटेशनल This लेकिन rotation जैसे helps ही meshing the pinion ये with जो the है flywheel more आपका conveniently. As the क्या नाम pinion है and flywheel डीएनर्जाइज is होगा properly यानी meshed, तो उसके the बाद contactor switch ये gets वापस आ जाएगा closed, ठीक वापस and the क्यों आया motor मोटर की spins. प्रोटेक्शन है ये भी अभी बताएगा As we मोटर can की observe प्रोटेक्शन that the जरूरी है pinion is considerably small compared to the flywheel. The gear ratio of the flywheel and pinion is generally from 15 to 1 to 20 to 1. क्योंकि The देखिए ये high मूव कर torque रहा है अभी obtained from this gear लेकिन reduction is still insufficient to जब फॉर crank the एग्जांपल engine. मोटर ऑफ होगी लेकिन So, a पिनियन इसके साथ planetary gear कनेक्टेड है set is introduced to जब increase the इंजन torque स्टार्ट हो further. जाएगा Planetary अच्छा ये देखिए gears इसके are अंदर ये भी है कि incredibly गियर useful for ये जो large छोटा 15 ये to गियर क्यों 1 लगाया है ये to छोटा 20 to पिनियन जो है 1. ना ये The इतना high टॉर्क torque प्रोड्यूस नहीं कर obtained सकता from this gear मतलब कि reduction उसको हैंडल कर is सके still इसके लिए insufficient फिर to crank थोड़ी the स्पेस भी engine. हमारे पास कम है So, हाउ टू a हैंडल दिस planetary gear छोटी set is स्पेस है यहाँ introduced पे to देख increase ये the कुछ गियर torque सिस्टम और भी further. लगाया हुआ है इनके डिफरेंट नाम Planetary रखे हुए हैं gears वैसे ये are बता भी रहा है इधर incredibly useful तो for ये गियर large gear सिस्टम डिफरेंट reductions उसने with ये less लगाया weight स्पेस and कम limited होने की वजह से space. भी और ये It इसको consists थोड़ा of a sun ताकि gear, जो है ना वो a ring gear, ये सन रिंग a और ये रिंग carrier, टाइप और सन और ये and गियर a set of डिफरेंट planet बताइए gears. एक उधर मोटर के साथ In कनेक्टेड है दूसरा जो starters, है वो the ring इधर gear आगे is वो fixed, शिफ्ट the करता है sun gear is the तो input, इसमें and the planet carrier is the output. For the setup shown here, the gear ratio is 7 to 1. The combined gear reduction results in enough torque to spin the engine. As the engine is flywheel अच्छा ये to मूव कर रहा है prevent उसके बाद backdrive देखें of the motor, तो which might damage it due to the excessive speed. This is done by releasing और the ये सारा ignition मैकेनिकल switch, है वो नहीं से which कहेंगे थोड़ा सा वो de-energizes the एक्सप्लेन करें solenoid, मैकेनिकल का and the pinion returns तो back. But ये if the देखिए अब operator ये fails वापस आ to गया ये release पिनियन the ignition अब ये switch as डिस्कनेक्ट हो soon गया as the अब engine इंजन is स्टार्ट हो started, गया तो मोटर को नहीं the चलना चाहिए था flywheel will तो drive अगर the pinion इंजन too स्टार्ट हो गया fast पिनियन and इसके साथ damage the कनेक्टेड motor. होता देन To prevent this, वो उसकी a स्पीड one-way चूंकि clutch स्टार्ट में तो is कम होती है used. ना The one-way उसके clutch बाद has a स्पीड set इसकी of ज्यादा नहीं हो rollers जाती इंजन installed between the स्टार्ट हो outer जाता and है inner तो स्टार्ट races. उससे उसके When the लिए ये outer लगाया इसको races क्या कहते हैं rotate इसका नाम क्या है इसका नाम था by the ये नाम बता motor, रहा है अभी इसका the outer and inner races. One-way clutch is used. The one-way damage the motor. To prevent तो this, क्या कहते हैं a one-way clutch is used. The one-way clutch has a set of rollers installed between the outer and inner races. When the outer race is rotated by the motor, the इसका rollers नाम get ये trapped जस्ट ये and देखना transfer जब मोटर power मूव to the कर रही है pinion. तो ये मूव कर As रहा है soon as the engine is जैसे ही started आपका and drives the pinion at इंजन a high स्टार्ट होगा speed, इंजन the rollers स्पीड get से मूव कर ये released देखिए आप फ्री and power transfer ये आपने is किसी और stopped. जगह भी पढ़ा होगा मेरे अब किसी जगह एग्जांपल दें ना कहीं ये होता है किसी और जगह भी इन फ्री हो जाता है फिर ये देखिए मोटर मूव कर रही थी पहले ये देखिए मोटर मूव कर रही थी ये As पहले soon मोटर as मूव the कर engine रही is मोटर started इंजन को and स्टार्ट कर रही drives the pinion at a high speed, अब स्टार्ट हो गया the जैसे rollers जैसे get इंजन की स्पीड released बढ़ेगी and ये power फ्री हो जाएगा transfer यानी फिर is ये मूव stopped. नहीं करेगा समझ रहे मोटर वाला फिनोमेना चलेगा तो ये उसको करेगा ये इसलिए होता है कि The क्या roll- नाम है क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मोटर को डैमेज कर देगा ठीक है तो हमने फिर मोटर को उससे अलग करना होता है ठीक है तो अलग करने के लिए फिर ये पूरा इसका फिनोमेना हम इसको देखते हैं अच्छा ये तो हो गया चले हमारा स्टार्टिंग सिस्टम ठीक है विद इलेक्ट्रिक मोटर्स यहाँ सेल्फ स्टार्टर हमने देखा एंड कंप्रेस्ड एयर वाला फिनोमेना भी होता है डेफिनेटली और इसके अंदर ये थोड़ा सा ओवरऑल डायग्राम बताई हुई है इसके अंदर अगर आप देखें तो फ्यूल टैंक है फ्यूल टैंक और ये डे टैंक पूरा प्रोसेस का लिखा हुआ है और उसके बाद आप देखें तो एयर फिल्टर है डीजल इंजन के अंदर एयर इनटेक करने के लिए यहाँ से फ्यूल इनटेक हो रही है डीजल इंजन के अंदर ठीक है और ये पूरा प्रोसेस के अंदर यू विल सी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट two-stroke and four-stroke engines, how the you can say fuel injection mechanism work. So by with the help of air intake and fuel intake, and then there is you will see here the silencer. This is the exhaust system, and before the silencer, you can see here is also the super turbocharger. That is called the turbocharger or supercharger charging mechanism where the heat from the gases will be extracted for to further increase the efficiency of the system. And then there is a cooling tower. Here you can see the water from the surge tank or water is from the storage is flowing through the heat exchanger and then back to the diesel engine and you can say to cool and this heat exchanger is you can say exchanging the hot water with the help of cooling tower you can say. So this is the cooling mechanism. Here is the intake where fuel intake and air intake is there. This is the silencer exhaust system and diesel engine and generator is there main parts and also here you can see there is a control panel where different parameters for example frequency voltage and you can say
speed, fuel level, whether fuel available, everything is there. And then there is a the last one is second last is lubrication system and then starting system. So ये main system कोई बता सकता है मुझे दोबारा? एक फ्यूल सिस्टम हो गया, इनटेक सिस्टम हो गया जिसके अंदर एयर इनटेक और फ्यूल हो गया, दूसरा इंजन मेन पार्ट है और उसके बाद जनरेटर आ गया, अल्टरनेटर, साथ कंट्रोल पैनल हो गया अल्टरनेटर के आगे। नेक्स्ट कूलिंग सिस्टम हो गया, कूलिंग वाला, लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया जिसके साइलेंसर है, और उसके बाद क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे मेन पार्ट्स हैं विच विल आल्सो सी फिजिकली। अच्छा, उसके बाद देखें कूलिंग मेथड्स मुझे बताएंगे आप, कूलिंग मेथड्स। हाँ, इसमें क्या होता है बताएं जरा। ठीक है, तो एयर और उसमें देखें अगर इसकी देखें हम एफिशिएंसी, तो एयर और वाटर में कितना फर्क है, यानी कितना एफिशिएंट है ये देखिए 13 to 15% ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय दिस मेथड एयर, और वाटर में क्या है वो एयर कूलिंग है। ठीक है, एयर कूलिंग ये लिखा भी हुआ है, एयर कूलिंग के अंदर ये यही होता है, उस मोटरसाइकिल में भी यही वॉल्व और पिस्टन और ऊपर हेड और ये देखें फिन्स लगे होते हैं उधर, वो सब पूरा प्रोसेस होता है एयर कूलिंग। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि वाटर कूलिंग में क्या है, इसकी कोई एग्जांपल दें, कोई एग्जांपल है आपके ध्यान में? कौन सा? कार का जो रेडिएटर है उसकी, और कोई इसके अलावा? बस दो मेन एग्जांपल। ठीक है, अच्छा ये हो गया वाटर कूलिंग, और उसके बाद अच्छा वाटर कूलिंग सिस्टम को जो यूज करते हैं उसके अंदर भी दो टाइप्स है, ओपन और सिंगल सर्किट सिस्टम और क्लोज और डबल सर्किट। इसको कोई बता सकता है कैसे? ओपन, ये ऊपर सिंपल जो है ना ओपन और सिंगल सर्किट है सिस्टम, ये नीचे वाला आप देखें तो क्लोज्ड और डबल सर्किट सिस्टम। ये क्या फर्क है इसमें? नजर आ रहा है कोई फर्क? देखिए वाटर है, ये वाटर अवेलेबल है, पंप के जरिए सर्कुलेट कर दिए, ऐसे ही है ना। इधर डबल क्यों है, डबल सर्किट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हीट एक्सचेंजर आ गया एंड पंप से हमने वाटर, वही प्रोसेस जो इधर था वो पहले हमने हीट एक्सचेंजर से, और हीट एक्सचेंजर के जरिए हमने देखा हीट एक्सचेंजर से जो यानी कूलिंग टावर हमने दूसरी तरफ से लगा दिया, ऐसे ही है ना। तो हीट एक्सचेंजर बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको डबल या डबल सर्किट करेंगे ये वाटर का। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए तो इसके अंदर भी आपके वाटर को सर्कुलेट करना जो है सिलेंडर में, वो डिफरेंट मेथड है। उसके अंदर थर्मो साइफोन कूलिंग ये है, इसकी डिफरेंट टाइप्स, फोर्स कूलिंग भी है, थर्मोस्टेट है, प्रेशराइज्ड वाटर है, एवेपोरेशन, ये डिफरेंट कूलिंग्स हैं जिसके कुछ वो डिटेल। हाँ बताएं थोड़ा सा क्या है थर्मो साइफोन, क्या होगी कूलिंग? थर्मो साइफोन कौन सी है? देखें ना, ये अपर टैंक का रेडिएटर है, लोअर टैंक है, और यहाँ से आप देखें चलिए दे देते हैं। इन दिस मेथड वाटर फ्लो इज काज्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस द रेट ऑफ सर्कुलेशन इज हाउएवर स्लो एंड इनसफिशिएंट। डेंसिटी जो यानी हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी खुद ही यानी वो फ्लो वाला वो प्रोसेस होगा, और इसके अंदर देखें तो रेट ऑफ सर्कुलेशन इज स्लो होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें फोर्स कूलिंग में क्या है, ये नीचे वाला। अच्छा फोर्स कूलिंग के अंदर देखें तो टेकिंग पावर फ्रॉम द इंजन फोर्सेस वाटर टू सर्कुलेट, इसमें फोर्सिंग होगी, ज्यादा पंप शंप लगा होगा इसको विच में काज लो टेम्परेचर क्रूजन ऑफ मेटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। तो फोर्स कूलिंग बाय पंप, ये पंप के जरिए है डेफिनेटली। अच्छा थर्मोस्टेट कूलिंग कौन सी है? एंड प्रोटेक्ट्स द इंजन फ्रॉम गेटिंग ओवरकूल्ड। ओवरकूल्ड भी होना चाहिए, इसलिए ओवर हीटर भी लगा होता है इसके साथ। आप उधर भी देखेंगे हम फिजिकल हीटर भी होता है, यानी जब हमने प्रोसेस करना है तो उसको डायरेक्ट, जिस तरह बर्नर वो आपका जो बॉयलर था, तो बॉयलर में हम डायरेक्ट वो नहीं देते, क्या करते हैं उसको बोला उसको उसको थोड़ा हार्ड करते हैं। ठीक है ना, तो वो हार्ड वाला प्रोसेस इधर भी करते हैं हम। ठीक है, थर्मोस्टेट के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है और उससे हम उसको ओवरकूल्ड होने नहीं देते और उसको एक डिजायरेबल टेम्परेचर में रखते हैं, तो ये थर्मोस्टेट होगी। थर्मोस्टेट में देखें तो ये डायग्राम ये उसकी बनी हुई है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये रेडिएटर, इसमें क्या नजर है, ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो थर्मोस्टेट से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि थर्मो जैसे वो टेम्परेचर उसको उतना मेंटेन करना है हमने। अच्छा उसके बाद तीसरा कौन सा है, प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग है। इसमें क्या करते हैं,
प्रेशराइज यानी वाटर प्रेशराइज करके भेजेंगे, ठीक है। ये इसकी डायग्राम मेरे ख्याल नहीं है शायद, हाँ। अच्छा, उसके बाद देखें तो एवेपोरेटिव कूलिंग है, इसमें क्या है, एवेपोरेशन का फिनोमेना है कि वाटर इज अलाउड टू एवेपोरेट अब्सॉर्बिंग द लेटेंट हीट। एवेपोरेशन होगी अब्सॉर्बिंग लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम द सिलेंडर वॉल्स एंड कूलिंग सर्किट इज सच कूलेंट इज ऑलवेज लिक्विड एंड स्टीम फ्लैशेस इन दिस सेपरेट वेसल। तो यानी वो हीट होगी, स्टीम बन गई और एवेपोरेट हुई, और एवेपोरेट के बाद हम उसका वो कूलिंग प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद देखें अच्छा, हीट लॉस बाय वाटर कूलिंग ज्यादा होगी या उसकी बाय एयर कूलिंग ज्यादा होगी? उसकी क्या वजह है? किसकी? वाटर की हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो हीट इधर देखें उधर कितनी 32, तो ये देखें 25 to 35%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट चलें, क्लोज सिस्टम ऑफ कूलिंग इज मोस्टली यूज्ड इन पावर स्टेशंस। अ क्लोज कूलिंग सिस्टम कंप्राइजेस द फॉलोइंग इक्विपमेंट। कौन सा है? सर्च टैंक है, सॉफ्ट वाटर सर्कुलेटिंग पंप है, डेफिनेटली पंप्स और पूरा उसका सर्कुलेशन प्रोसेस और ये पार्ट्स है, इसको अब छोड़। अच्छा, उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम देखें। लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर आप देखें तो क्या यूज होता है, ऑयल यूज होता है पूरा प्रोसेस के अंदर, लुब्रिकेशन का मेंशन किया हुआ है इसके अंदर। अगर आप देखें तो लुब्रिकेशन जो लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन ऑयल है उसका फंक्शन क्या है, इसने वियर एंड टियर को कम करना है, फ्रिक्शन को कम करेगा पार्ट्स बाय मिनिमाइजिंग द फ्लो ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, उसके बाद पिस्टन रिंग्स टू सील द गैसेस इन द सिलेंडर, ठीक है। तो गैसेस की लीकेज को भी वो करता है क्या, इंजन के लुब्रिकेशन का काम जो है, नहीं वो कूलिंग सिस्टम से करेंगे ना, फिर कूलिंग का क्या फायदा हो? डेफिनेटली वो अगर होगा तो प्रोसेस तो होगा इट, लेकिन मेन पार्ट से लिखे हुए इट रिमूव्स द हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कीप द पार्ट्स कूल, ठीक है, सही कह रहे हैं। द वेरियस लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन इंजन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, लुब्रिकेंट में लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड है, ठीक है, ये पढ़े हुए हैं आपने पहले। लिक्विड, अब लिक्विड कौन से हैं? लिक्विड ऑयल्स आर मोस्टली यूज्ड। लिक्विड लुब्रिकेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मिनरल, ये फैटी, ये डिफरेंट उसके हैं लुब्रिकेंट। और उसके बाद जो गुड लुब्रिकेंट है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर के से नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ, जो रबिंग सरफेस है उसके दरमियान, आप उसके दरमियान समझे कि आपका ये एक लेयर बनाता है दोनों के दरमियान। क्यों बनाता है, उसकी क्या वजह है, क्या फायदा होगा, क्या करेगा करने के लिए भी, वो एक लेयर है जो आपकी फ्रिक्शन लेयर। इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट सो दैट कैन रिमूव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो जो जुबैर कह रहे हैं जिस तरह हीट इसको वो भी रिमूव करेगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रूसिव एसिड्स, ठीक है। द लुब्रिकेंट शुड बी प्योरीफाइड बिफोर इट एंटर, ठीक है। तो प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डस्ट, मॉइस्चर, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर भी यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। और जो फ्यूल के लिए हम उसमें से इम्प्योरिटी खत्म करने के लिए स्ट्रेनर हम यूज करते हैं सर। अच्छा, lubricating oil gets heated because of friction of moving parts and should be cooled before recirculating, ठीक है। cooling water used in the engine may be used for cooling nearly इतना। अच्छा, lubricating oil is purified by following 4 methods। lubricating oil is purified by सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग। ये लुब्रिकेशन ऑयल को प्योरीफाई कैसे करना है, ये उसके प्रोसेस है पूरे। इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है वैसे, लेकिन अगर देखना चाहें तो इसका एक अलग अलग से हम सेटलिंग और इसको वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्टिंग मेथड हमने एक देखा है इसका, इंजन का स्टार्टिंग मेथड जो है वो उसके अंदर आपका ये बल्कि लिखा हुआ है इसने कि पेट्रोल इंजन जो है स्पार्क इग्निशन इंजन है, और जो आपका क्या नाम है, हैंड एंड इलेक्ट्रिक मोटर 6 से 12 वोल्ट। वैसे हमारी जो है उधर 12 + 12 दैट इज 24 वोल्ट इन सीरीज, उससे हम वी आर स्टार्टिंग दैट, मतलब ये, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स आर अवेलेबल। और उसके बाद कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम क्या है, इज यूज्ड टू स्टार्ट लार्ज डीजल इंजन। तो लार्ज, ये आप देखें 512 किलोवाट के हैं, मतलब 256 किलोवाट का है, तो दैट इज बैटरी ऑपरेटेड है। लेकिन इसकी फिर रेंज क्या लिखेंगे हम, रेंज मुझे तो नहीं नजर आई, वैसे आपके जहन में है रेंज, क्या रेंज होगी कि इससे बड़े बड़े हम उसको हम कंप्रेस्ड एयर सिस्टम से वो करेंगे, ये इसकी रेंज देखनी है, ठीक है। आप खुद भी देखिएगा, तो इसकी रेंज जो है हम, अच्छा उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग।
अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वो हम देख चुके हैं अभी, उसका पूरा फिनोमेना भी हमने देखा है। 12 से 36 वोल्ट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू द इलेक्ट्रिक मोटर। 12 to 3 बैटरीज इन सीरीज आल्सो पॉसिबल, एंड राइट नाउ वी हैव 2 बैटरीज। अच्छा, उसके बाद देखें starting by an auxiliary, this is third method. First one electric motor or self starter or electric motor, और दूसरा जो है starting with the compressed air, और तीसरा मैकेनिज्म जो है starting with auxiliary engine, auxiliary। इसमें क्या करते हैं हम, स्मॉल पेट्रोल इंजन जो है वो हम कनेक्ट करते हैं मेन इंजन के साथ, और क्लच और गियर सिस्टम वही जो पिनियन और वो हमने मैकेनिज्म पढ़ा, इसी तरह क्लच का सिस्टम होगा। और उससे हम जो है फर्स्टली हम डिसएंगेज करेंगे, हाथ से उसको चलाएंगे जिस तरह हाथ से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हाथ से कुछ चलाते हैं ना हम, ये जो घर के जनरेटर कुछ चलाते हैं ना, तो वो आप समझे कि स्टार्टिंग बाय ऑक्सिलरी इंजन क्लच सिस्टम से हम जो है वो काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें स्टार्टिंग प्रोसीजर। स्टार्टिंग प्रोसीजर डेफिनेटली स्टार्टिंग के लिए इससे पहले हमने कुछ चीजें देखनी होती हैं इसमें। हाँ देखें, ये सबसे पहले आपने फ्यूल चेक करना है कि फ्यूल है कि नहीं, बैटरी चार्ज है कि नहीं, बैटरी को आप देख लेंगे पहले भी उसका स्टार्टिंग सिस्टम, फिर फ्यूल अवेलेबल है कि नहीं। फ्यूल के लिए भी आप देखें, इधर हम देखेंगे फ्यूल के लिए जिस तरह हम वो बाइक का नहीं देखते, बाइक के अंदर वो लगी होती है ना, जैसे ही ओपन करते हैं तो वो आपको उससे लेवल पता चल जाता है। इधर भी इसी तरह का वो लंबा सा राड होता है, निकालते हैं और उससे वो पता चल जाता है क्योंकि। अच्छा, लुब्रिकेटिंग सिस्टम एंड कूलिंग वाटर सप्लाई है, ठीक है, लुब्रिकेटिंग एंड वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई भी हमने देखनी है कि ओके लुब्रिकेशन सिस्टम इज वर्किंग और नॉट, ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले। ऑल्सो देयर शुड बी नो लोड ऑन द जनरेटर, यानी लोड के ऊपर हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और वैसे भी फॉर एग्जांपल यूटिलिटी है हमारी, वापडा है, तो वापडा से हम जो है वो, अगर वापडा है तो विल नॉट स्टार्ट इट, तो पैरेलल में तो हम नहीं चलाते ना, वापडा नहीं है तो वो, तो इसके लिए हमारे इधर जो है ना हमारा फॉर एग्जांपल इसको होता है हैं 312 केवीए का है, और 256 अगर इसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो 256 किलो वाट का आता है, ठीक है। तो कितना रहता है, बस थोड़ा सा रह गया, अब आप थोड़ा सा वो बताए ना, ये चीजें आपने नहीं पढ़ी तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, ये चलें ठीक है। ये स्टार्टिंग प्रोसीजर जो है आपका, स्टार्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू चेक फ्यूल सप्लाई, बैटरी, एवरीथिंग यू हैव टू चेक, दीज आर मेंशन्ड हियर, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टॉपिंग ऑफ इंजन। स्टॉप कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, वी कैन अब्रप्टली स्टॉप इट, टॉप स्टॉप द इंजन, द स्पीड शुड बी, तो इसको हम जो है ना देखिए हमने डिक्रीज किया अंटिल नो पावर इज डिलीवर्ड, और उसके बाद आखिर में हमने इसको जब स्टॉप करके थोड़ी देर हम इसको वो अलाउ टू रन, उसके बाद हम स्टॉप करते हैं। और उसके बाद देखें स्टार्टिंग एड्स में देखें, मे बी यूज ड्यूरिंग कोल्ड वेदर टू ऑब्टेन क्विकर स्टार्टिंग ऑफ द इंजन। अब देखें कोल्ड वेदर में कई दफा स्टार्ट नहीं होते, घर के इंजन भी स्टार्ट नहीं होते, तो उसके अंदर फिर हम ये क्या करते हैं कि ये इथाइल ईथर इज मोस्टली यूज्ड एज अ एड, उसके लिए यूज करते हैं। वार्मिंग अप, अच्छा, या फिर ये ग्लो प्लग्स भी यूज करते हैं। ग्लो प्लग्स हम जब थर्मल सोलर थर्मल हम पढ़ेंगे तो वहां भी सोलर उधर भी ये ग्लो प्लग्स का कंसेप्ट है। वार्मिंग अप ऑफ डीजल इंजन, तो वार्मिंग का फिनोमेना है कि यानी आपने शुरू में जो है आप देखें तो डीजल इंजन शुड बी अलाउड टू वार्म अप फॉर 4 to 5 मिनट्स है, यानी इतने मिनट्स आफ्टर द इंजन हैज स्टार्टेड। ड्यूरिंग दिस टाइम द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी चेक्ड, टू चेक वेदर द फायरिंग इज करेक्ट, टू चेक द ऑपरेशन ऑफ फ्यूल पंप, चेक द कूलिंग वाटर सिस्टम, वही जो स्टार्टिंग में फिनोमेना है उसी के अंदर वार्मिंग फिनोमेना वाले ऑप्शन भी हमने उसको चेक करने। उसके बाद देखें आईसी इंजन फ्यूल है, फ्यूल ये जो आईसी इंजन का फ्यूल है, इंटरनल कंबस्शन इंजन यूज बोथ ऑयल एंड गैस फ्यूल्स, और उसके अंदर देखिए फार्मर बीइंग प्रीडोमिनेंट, ऑयल ज्यादा, ये डीजल या ये जो पेट्रोल है, गैस फ्यूल भी यूज होता है, लेकिन फिलहाल हम डीजल की बात कर रहे हैं। तो ऑयल्स यूज्ड आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, ये है इसकी 10 प्रॉपर्टीज, ये कोई बारी बारी मुझे बता दे। सीटेन नंबर है, विस्कोसिटी है, वोलेटिलिटी है, कोर पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, और ये हीटिंग वैल्यू है, डिस्टिलेशन टेस्ट है, ये पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स को इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। यानी ये सारी उसको समझिए कि उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखें फ्यूल सप्लाई है। अब फ्यूल सप्लाई अगर आप देखें तो लिक्विड फॉर्म में डेफिनेटली है, और बल्क स्टोरेज और इंजन जो डे स्टोरेज टैंक है वो उसका प्रोसेस बताया हुआ है। उसके बाद आप देखें तो इसको आगे चलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, डेफिनेटली हमने देख लिया फ्यूल इंजेक्शन के अंदर
फ्यूल इंजेक्शन के अंदर आप देखें एयर इंजेक्शन और सॉलिड इंजेक्शन है, एयर और सॉलिड इंजेक्शन है। और इसके अंदर आप देखें तो सॉलिड के अंदर भी यूनिट इंजेक्टर, पंप इंजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन, ये डिफरेंट इंजेक्शन का फिनोमिना है। और इसकी वीडियो है लेकिन अभी हम उसको डिफरेंट जो है ना कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम है, इंडिविजुअल पंप, कॉमन रेल इंजेक्शन या इसको कह लें यूनिट इंजेक्टर भी कह देते हैं या कॉमन रेल इंजेक्शन कह दें। दूसरा आपका इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन या पंप इंजेक्शन कह दें, ठीक है। तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन, ये सिस्टम यूज होते हैं। और कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन भी इसको कह देते हैं, CRDI अगर आए तो वो इसका मतलब यही है कि यूनिट इंजेक्टर है या कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम है, ठीक है। और ये इसका यूनिट इंजेक्टर जो है इसका थोड़ा सा फिनोमेना इसने बताया हुआ है। और उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको हम अभी फिलहाल, ठीक है जी। इंजेक्शन यानी फ्यूल को इंजेक्ट करने के मेथड्स हैं डिफरेंट, ठीक है। और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन भी आ गया, ठीक है। अब फ्यूल इंजेक्शन नोजल है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन नोजल में भी देखें तो मल्टी होल नोजल भी होती है और पिंटल नोजल, दोनों के अपने फायदे हैं। और इसके नोजल का मैंने इधर बनाई हुई है, लेकिन इसको अभी हम नोजल का पूरा प्रोसेस ये देखें, ये CRDI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। अगर इसको थोड़ा सा हम देखें तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम कैसे करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CRDI का मीनिंग क्या होता है, उसके फायदे कौन से हैं, CRDI का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है और CRDI काम कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो CRDI का मीनिंग होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। और नाम के मुताबिक ही इस सिस्टम में डीजल को हाई प्रेशर से कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट और पावर आउटपुट दोनों के अंदर ही हाई प्रेशर फ्यूल पंप लगा होगा, कनेक्टेड होगा सेंसर जो कि क्रैंकशाफ्ट में 5 का और एक्सेलरेटर इंटेक में फुल में जा रही है। EMU डिसाइड कर पाएगा कि इंजन के अंदर रीच मिक्सर इंजेक्ट करना है या फिर लीन मिक्सर। अब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट इसके अंदर आप देखें तो EMU इंजन मैनेजमेंट यूनिट है। इसको इनपुट देखें तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगे हुए हैं, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, फिर ऑक्सीजन सेंसर है कि ऑक्सीजन इज जो है प्रॉपर ऑक्सीजन इज flowing properly or not, crankshaft position है, position sensor है, then fuel temperature sensor, all these things are the inputs to engine management unit. and here they देखें fuel filter, प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, फ्यूल फिल्टर के बाद आप देखें हाई प्रेशर फ्यूल पंप है, उसके बाद प्रेशर सेंसर से आप वो चेक भी कर रहे हैं प्रेशर। और उसके बाद आप देखें तो प्रेशर के बाद फ्यूल रेल है एक पूरी, और इस फ्यूल रेल से फिर हम क्या करते हैं कि EMU के थ्रू हम जैसी प्रेशर प्रॉपर और जो एवरीथिंग इज ओके, देन वी विल जस्ट ये क्या कहते हैं कि इसको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और ये इंजेक्टर जो है फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। तो ये इसका CRDI जो टाइप इंजेक्टर था वो इस तरीके से वो काम करता है। और इसी तरह अगर आप देखें जो नोजल्स हैं, जो मैंने आपको दो बताई हैं नोजल्स, ये यानी कौन सी थी, मल्टी होल और पिंटल नोजल है। अगर इसको अगर हम देखें तो Most diesel fuel injectors use the same basic design, made from heat-treated alloy steel. The actual shape will vary according to the application. The injector assembly has several main parts. The nozzle assembly is made up of a needle and body. A pressure spring and spindle hold the needle on the seat in the nozzle body. A nozzle holder, sometimes called the injector body, may allow for mounting the injector on the engine and some method of adjusting the spring force applied to the needle valve. A cover keeps out dirt and water. The injection pump delivers fuel to the injector. The fuel passes through a drilling in the nozzle body to a chamber above where the needle valve seats in the nozzle assembly. As fuel pressure in the injector gallery rises, it acts on the tapered shoulder of the needle valve, increasing the pressure until it overcomes the force from the spring and lifts the needle valve from its seat. The highly pressurized fuel enters the engine at a high velocity in an atomized spray. As soon as delivery from the pump stops, pressure under the needle tapered shoulder drops, and the spring force pushes the needle down on the seat, cutting off the fuel supply to the engine. Some of the fuel is allowed to leak between the nozzle needle and the body to cool and lubricate the injector. This fuel is collected by the leak-off line
and returned to the fuel tank for later use. ये सारा lubrication के लिए वो कह रहा है. There are two main types of injector nozzle, hole and pintle. ये वाला pintle. Hole-type nozzles are commonly used in direct injection engines. They can be single-hole or multi-hole, and they operate at very high pressures, up to 200 atmospheres. They give a hard spray, which is necessary to penetrate the highly compressed air. The fuel has a high velocity and good atomization, which is desirable in open combustion chamber engines. In pintle-type nozzles, a pin, or pintle, protrudes through a spray hole. The shape of the pintle determines the shape of the spray and the atomization of the spray pattern. Pintle nozzles open at lower pressures than hole. अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट पिंटल नोजल आगे फिल्टर एंड साइलेंसर इंस्टॉलेशन. फिल्टर और साइलेंसर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा इसने समझाया इधर डीजल इंजन के साथ. इसको आगे एडवांटेज डीजल इंजन के जो एडवांटेज हैं, डेफिनेटली लेआउट सिंपल है. फॉर एग्जांपल हाइड्रो और स्टीम पावर प्लांट अगर आपने लगाने हो तो अच्छा खासा टाइम लगता है. इसको आप इंडस्ट्रीज में भी ज्यादातर ये यूज होता है क्योंकि इसको इजीली और जल्दी इंस्टॉल किया जा सकता है. मैन पावर कम चाहिए इसकी, ठीक है, मतलब स्टाफ कम चाहिए इसको, ठीक है. और सेम रेटिंग की अगर स्टीम पावर प्लांट और डीजल हो तो सेम स्पेस कवर करे तो डीजल की कैपेसिटी ज्यादा, कैपेसिटी एक ही स्पेस में, यानी स्पेस एरिया अगर सेम हो तो डीजल इंजन की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है. तो इस तरीके से ये डिफरेंट एडवांटेज है. और उसके बाद देखें तो does not require large amount of water for cooling. वाटर ज्यादा नहीं चाहिए. Smaller in size than steam, ठीक है. Operation of the plant is easy, ठीक है. Compared to steam power plant using steam, the life of diesel power is longer. Diesel engine operate at higher thermal efficiency compared to this. Efficiency is a little higher than the steam power plants. और भी different advantage है. Capital cost is less, ठीक है. They require less cooling water. They can be started and stopped quickly. उनको प्रोसेस चाहिए, इसमें वो चीज़ नहीं है. लेस सिविल इंजीनियरिंग वर्क इज रिक्वायर्ड लेस, यानी इसको जब इंस्टॉल करना है तो इजी एंड वेरी फास्ट इंस्टॉलेशन इज पॉसिबल एज कम्पेयर टू हाइड्रो एंड स्टीम. एफिशिएंसी आप देखें इन पार्ट लोड्स इज आल्सो हायर, और हायर एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है. देयर इज नो ऐश हैंडलिंग का देखें स्टीम में या कोल में हमने देखा था पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर वो इतना नहीं है. इजियर लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक. और डिसएडवांटेज में यह है कि ऑपरेटिंग कास्ट इसकी हाई है, ठीक है. मेंटेनेंस कास्ट और लुब्रिकेशन कास्ट भी हाई है, ठीक है. कैपेसिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी आपको साइज इसका वो 5 मेगावाट या 50 मेगावाट तक, ठीक है. तो साइज की है. नॉइज प्रॉब्लम है, इसलिए इसको दूर लगाते हैं. देखिए इसके अंदर पोल्यूशन का इशू है, इसलिए देखें तो यूनिवर्सिटी में भी हमने वो साइड पे लगाया हुआ है ताकि पोल्यूशन भी ना हो और नॉइज भी. साइलेंसर लगा होता है लेकिन स्टिल यू विल सी जब वो स्टार्ट होता है तो डिपार्टमेंट में भी उसको वो इतनी आवाज. कैन नॉट सप्लाई ओवरलोड नहीं कर सकता. अभी हम देखें तो हमारा जनरेटर जो है वो 512 किलोवाट है दोनों, बोथ आर 512 किलोवाट, बट इट इज ऑपरेटेड इन 80% ऑफ लोड. कितना बनता है 85% करें इसका, तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 450 किलोवाट पे चल रहे हैं, ठीक है. वैसे भी पुराने हैं, 2014 के लिए हुए 22 साल हो गए, इसलिए 18 साल. तो ये ओवरलोड में नहीं चला सकते. बट स्टीम पावर प्लांट्स में देखें तो आप 125% यानी लोड का 25% ज्यादा ओवरलोड पे भी उसको कंटिन्यूस चला सकते हैं. इधर हाँ ये भी इशू है कि यू कैन नॉट कंटिन्यूसली रन दिस डीजल जनरेटर, बट स्टीम 24 आवर्स ओवरलोड पे चला सकते हैं आप, समझ रहे हैं. तो ये इस तरह के वो फायदे और नुकसान. नहीं एफिशिएंसी थोड़ी कम ज्यादा है ना यार. नहीं हायर एफिशिएंसी क्या कहता है, हाई एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फॉर फ्यूल, और उसके बाद इसने स्टीम से कंपैरिजन की है. एफिशिएंसी थोड़ी सी लिटिल हायर. किधर लिखा हुआ है, किधर लिखा था, इधर किधर था वो पॉइंट, किधर है. एट पार्ट वाज आल्सो हायर, अ लिटिल हायर एज कंपेयर टू स्टीम, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा है इसकी. अच्छा उसके बाद देखें तो चलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन साइट सिलेक्शन में भी देखें तो आप लोड सेंटर से कितना है, ये लोड के करीब लगाते हैं हम, हमारा लोड इधर ही है साथ ही लगाया हुआ है. फिर वाटर की अवेलेबिलिटी, ज्यादा वाटर नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कूलिंग के लिए इफ वाटर इज अवेलेबल इज ओके. फाउंडेशन कंडीशन, फाउंडेशन आप जमीन वो ना हो रेतली जहाँ वो आपकी फाउंडेशन यू कैन नॉट प्रॉपर्ली डू या कॉस्ट बढ़ जाए उसकी. फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, जो ऑयल आप डीजल है या उसकी एक्सेस टू साइट,
उसकी एक्सेसिबल भी है कि नहीं रेल या रोड के साथ, या आप उसको हाउ टू एक्सेस दैट साइड कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये आप लेआउट में देखें तो लेआउट तो जस्ट आप देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा बताया कि एक्सपेंशन के लिए स्पेस होनी चाहिए, और दोनों जो आपके डीजल जनरेटर उनके दरमियान भी देयर वुड बी a space so that operation and maintenance and everything can be done properly. Application of diesel engine power plants में देखें तो ये जिस तरह आपने बताया ये V8 या ये सारे कुछ एप्लीकेशन देख लिया, बाकी अदरवाइज यू कैन से रेल रोड, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स दे आर यूज्ड, एंड आल्सो पावर जनरेशन कैपेसिटीज फ्रॉम 100 to 500 HP ये किलोवाट। मेगावाट में कितना बनेगा जरा 5000 HP देखें जरा, मेगावाट में कितना बनता है? ये 5 मेगावाट तक जाता है या 50 पे तक जाता है? ये दे कैन बी यूज्ड एज स्टैंड बाई, ठीक है, पीक लोड के लिए भी एज कम्पेयर टू। और उसके बाद आप देखें तो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स वेयर पावर रिक्वायरमेंट आर स्मॉल से ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 किलोवाट 37 हाँ तो 50 मेगावाट किलोवाट मेगा कितना हो किलोवाट में कितना है? 3730 किलोवाट यार। इसको 1 HP में कितने किलोवाट होते हैं? 746 वाट होते हैं ना, तो इसको फिर 10 की पावर 6 से डिवाइड करें। 3730 वेरी गुड, तो 3.7 मेगावाट है, सही है ना। तो 5 मेगावाट तक ये मेरे ख्याल ये इस किताब में वैसे 5 मेगावाट तक की रेंज रखी एक जगह पर। दे कैन बी यूज, अच्छा देखें 500 किलोवाट तक देखें, दे आर मोर ओवरऑल एफिशिएंसी इज हायर। हमने भी ये देखें 2 जनरेटर हमारे 512 किलोवाट के, तो यू विल सी हियर दैट इंडस्ट्रियल कंसर्न्स यहाँ रिक्वायरमेंट ये है। वरना कुछ जगह जिस तरह गनी ग्लास है, गनी ग्लास में वो विजिट का मैं कोशिश अरेंज कर रहा हूँ, गनी ग्लास में उन्होंने गैस और डीजल जो पावर प्लांट है वो रखे हुए हैं। तो डीजल जो है वो 5 मेगावाट का है, और इसी तरह गैस जो है वो 6 मेगावाट है, और वो मेगावाट्स में है। तो समझ रहे हैं, ये गनी ग्लास इधर, ये हतार रोड जो है ना, HMC नहीं है, HEC हैवी इलेक्ट्रिक, इससे तो आगे किधर है? इसी एरिया में आगे, बस कोशिश कर रहे हैं अगर हो गया तो। अच्छा उसके बाद देखें जुबैर, ये कोशिश करना यार मैकेनिकल वाला विजिट जो है ना आपने करना, ठीक है, वो थोड़ा तक लैब में हम इसमें आज ही कीजिएगा कोशिश, क्योंकि इस वीक में हम कोशिश करें डीजल के बाद उधर ही चले जाएं, ये आपने नहीं। अच्छा उसके बाद देखें तो टू स्ट्रोक इंजन इज मोस्टली seen in application demanding a large power output, देखें ना, ठीक है, such as ships, electric generator plants, जहाँ ज्यादा आउटपुट चाहिए। और इसके बाद 4 स्ट्रोक, डेफिनेटली आप 4 स्ट्रोक ही चलते हैं ज्यादा, क्योंकि उसमें पोल्यूशन और सारे वो इश्यूज भी हैं। मोटराइज्ड लैंड ट्रांसपोर्ट बीइंग यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, डीजल ट्रेन्स, लाइट एयरक्राफ्ट्स एंड मोटरसाइकिल्स ज्यादातर। अच्छा उसके बाद ये चले, ठीक है, इसको छोड़े। मॉडर्न यूज 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, मॉडर्न 2 ये भी लिखा हुआ है। इसके बाद चले ये तो है कॉस्ट ऑफ डीजल पावर प्लांट। अच्छा इसकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट प्राइस देखें जरा से, डीजल जनरेटर की पर यूनिट प्राइस कितनी है पहले पढ़ी है कहीं? पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इसकी जो है वो, तो ये देखिए पर किलोवाट ऑफ कैपेसिटी 1500 से 2000 पर किलोवाट, यानी 1 किलोवाट के जनरेटर के हिसाब से देखें तो उसकी प्राइस 16 से 40 के दरमियान इसकी कॉस्ट है। अभी रिसेंट क्या चल रही है पाकिस्तान? अच्छा टेस्टिंग डीजल पावर प्लांट परफॉर्मेंस, ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली वही जो हीट वो बैलेंस शीट जो है उसमें रेट ऑफ फ्यूल, IHP, ये सारे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर, क्वांटिटी ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम देखेंगे, और इसी को हम कहते हैं टेस्टिंग डीजल पावर प्लांट परफॉर्मेंस। इन्हीं की बेस पे परफॉर्मेंस उसकी चेक होगी। अच्छा उसके बाद लॉग शीट है, तो लॉग क्या होता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एंड ऑपरेटिंग डिटेल्स इंटर्ड अप बाय द प्लांट ऑपरेटर, जो है वो लॉग शीट साथ साथ वो सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं। एडवांटेज ऑफ IC इंजन ओवर स्टीम इंजन, अब ये थोड़ा सा एडवांटेज लिखे हुए हैं, ये देखिए अभी आप स्टीम का बता रहे थे तो आप देखते हैं इधर एफिशिएंसी कितनी है, बताएं जरा। हायर एफिशिएंसी, ठीक है, 35 to 40%, लेकिन स्टीम की देखें 15 से 20 है, ठीक है। IC इंजन हैज लो वेट टू पावर रेशियो, इसका वेट कम होता है फॉर द सेम लो पावर रेशियो टू इट्स कॉम्पैक्ट डिजाइन इसका जो है आप देखें इस कम एरिया कवर करता है एज कम्पेयर टू स्टीम। तो देखें स्टीम कैपेसिटी के 2 जनरेटर हो तो आप देखेंगे इसका एरिया कम होगा। डीजल यूजुअली सिंगल एक्टिंग, हैंस देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ स्टफिंग बॉक्स ग्लैंड्स।
ठीक है। स्टार्ट द स्टीम इंजन फर्स्टली द बॉयलर इज टू बी फायर्ड, तो वो मैंने बताया कि उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, इसको क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस के हवाले से देखें तो मेंटेनेंस के अंदर आपका डेफिनेटली वो सारे फिल्टर्स और सारा उसका प्रोसेस में लिखा हुआ है मेंटेनेंस का। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन देखें अगर हम, तो कंजम्पशन जो है वो आपकी बाय द इंजन पावर टू हॉर्स पावर प्रोड्यूस्ड आर डिलीवर्ड बाय द इंजन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, अब पेट्रोल और उसका कंपैरिजन किया हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखें तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ये मुझे बता दें बस। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ डीजल इंजन सुपीरियर देन द पेट्रोल इंजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो हायर है, डीजल इंजन में कंबस्टन टेक प्लेस अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, रेदर देन कांस्टेंट वॉल्यूम, और नो इलेक्ट्रिक स्पार्क इज रिक्वायर्ड। डीजल इंजन में इलेक्ट्रिक स्पार्क रिक्वायर्ड नहीं है। डीजल इज चीपर देन पेट्रोल बिकॉज द पावर कॉस्ट इज डीजल इज, पेट्रोल महंगा है ना यार, डीजल कितने क्या रेट है डीजल का भी? थोड़ा सा फर्क होता है ना, थोड़ा सस्ता होता है ना उससे। अच्छा, सुपर चार्जिंग मैंने बता दिया। सप्लाई ऑफ एयर इज पंप्ड इनटू द सिलेंडर एट द प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इज कॉल्ड सुपर चार्जिंग, ठीक है। वो आपका शुरू में आप उसको हीट को यूज करते हैं, और ये आपका जो साइलेंसर होता है एग्जॉस्ट में, साइलेंसर से पहले ये लगा। अच्छा, उसके बाद चलिए ये तो सुपर चार्जिंग का फिनोमेना लिखा हुआ है। और उसके बाद देखें तो ये जो है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स यूज्ड एज सुपर चार्जर्स। तो अब आप देखें इसके अंदर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपर चार्जर्स और सेंट्रीफ्यूगल टाइप, ये सुपर चार्जर्स के आगे टाइप्स हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपर चार्जर्स, उसकी फिर मजीद रोटरी और ये स्क्रू पिस्टन डिफरेंट टाइप्स हैं। और उसके बाद एडवांटेज ऑफ सुपर चार्जिंग का आप एडवांटेज पढ़ ले अगर सुपर चार्जिंग के क्या है, फायदे क्या हैं। डीजल पावर जनरली सुपर चार्ज द वेरियस एडवांटेज फॉर गिवन आउटपुट, इंजन साइज इज रिड्यूस, इंजन कम हो गया है, फिर इसकी आउटपुट इंक्रीज हो गई है, फिर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द सुपरचार्ज इंजन इज लेस, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि जो प्री इग्निशन और दूसरा क्या था, वो दोनों से हम इसको अवॉइड कर लेते हैं सुपरचार्जिंग की वजह से। प्री इग्निशन और दूसरा ये था कि क्या था दूसरा 53 पे याद रखना, प्री इग्निशन और दूसरा क्या था नॉकिंग मींस ज्यादा फ्यूल जा रहा है और वो बर्न ही नहीं हो रहा, ठीक है। और अच्छा 53 था 53। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर आप तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी था बीच में, कंबस्शन सीआई इंजन और आईसी इंजन और एसआई इंजन, ये सारे जो है ना थोड़े मिक्स हो रहे थे। तो ये सीआई इंजन इज द टाइप ऑफ आईसी इंजन, ठीक है, सीआई, और अनदर टाइप ऑफ आईसी इंजन इज द एसआई इंजन। एसआई क्या चीज है? स्पार्क इग्निशन, ठीक है। और सीआई कंप्रेशन इग्निशन ही था ना, ये सर। तो ये दोनों टाइप्स हैं इसकी, ये थोड़ा सा इसको भी हमने कंपैरिजन ऑफ गैस टरबाइन, डीजल इंजन को आप गैस के साथ कंपैरिजन करें तो गैस टरबाइन हैज लेस नंबर ऑफ पार्ट्स, गैस टरबाइन हैज लेसर नंबर ऑफ पार्ट्स, क्या मतलब? अच्छा, पार्ट्स इसका जो पूरा सिस्टम होगा ना गैस का, इसके अंदर ये सिंप्लीफाइड होता है, यानी ये गैस का डीजल से ये बेहतर है। मैकेनिकल लॉसेज इन गैस टरबाइन लेस, क्यों? वजह क्या है? पार्ट्स कम है, ज़ाहिर है मूविंग पार्ट्स कम है और सारा उसमें। लाइफ ऑफ गैस टरबाइन इज लॉन्गर, ठीक है। इट इज इजियर टू कैरी आउट हीट ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। गैस टरबाइन हैज लार्ज पावर टू वेट रेशियो, इसका क्या मतलब है? वेट कम होगा, ठीक है। तो यानी स्टीम एक ही स्पेस के अंदर स्टीम लगाया, फिर डीजल, फिर उसके बाद गैस, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गैस टरबाइन, दिस मेक्स इट मोर सुटेबल फॉर द गैस टरबाइन इज सिंपल, ठीक है, reliable in operation because balancing of rotating masses both static, ठीक है। further the absence of valve in gas turbine parts that are to be lubricated are few in numbers, ठीक है। maintenance easy, ठीक है। बस ये तो ये था थोड़ा सा प्रोसेस। अब मैं थोड़ा सा आपको वीडियो को अच्छी सी एक और भी थी मेरे ख्याल काफी मैंने सेलेक्ट की थी बीच में, तो मैं जरा उसको देख लूं कि यार ये इतनी बड़ी वो कैसे अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। आप वेबसाइट में तो मेरी फ्री वाली यूज कर रहा हूँ, उसमें स्पेस ही कोई नहीं। Explain the differences between spark and compression ignition engines. We know that spark ignition engine is the engine in which combustion takes place with the help of a spark produced by the spark plug. Here, combustion is a constant volume process. Also, we know that compression ignition engine is the engine in which combustion takes place. Explain the differences between spark and compression ignition engines.
We know that spark ignition engine is the engine in which combustion takes place with the help of a spark produced by the spark plug. Here, combustion is a constant volume process. Also, we know that compression ignition engine is the engine in which combustion takes place with the help of the heat of compression. Here, combustion is a constant pressure process. The key parameters used for comparing the two engines are basic cycle, type of fuel, injection of fuel, compression ratio, speed, thermal efficiency, ये सारी process हैं. a constant volume heat addition cycle, whereas compressed ignition आगे हाँ ये थोड़ा सा आगे one engine works on the basis of Otto cycle साइकिल होता है ये, ठीक है? or constant volume heat addition cycle, whereas compressed ignition engine works on the basis of diesel cycle or constant pressure heat addition cycle. क्या था इसमें फर्क क्या था दूसरा? Constant volume है और ये constant pressure है, ठीक है? Spark ignition engine uses petrol as the working fuel. Petrol is a highly volatile fuel and has a high self-ignition temperature, whereas compressed ignition engine uses diesel as the working fuel. Diesel is a non-volatile fuel and has a low self-ignition temperature. इसलिए compress करते हैं तो आग लग जाती है. तो पेट्रोल का जो हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें स्पार्क. In spark ignition engine, a mixture of air and fuel is introduced in the suction stroke. Thus, it consists of a carburetor for mixing the air and fuel. Whereas in compressed ignition engine, fuel is injected directly into the combustion chamber at high pressure. Thus, it consists of a fuel pump and a fuel injector. In spark ignition engine, ignition process is carried out with the help of a mixture. Self-ignition occurs due to high temperature of air because of high compression. Here, spark plug and ignition system are not. In spark ignition engine, compression ratio varies from 6 to 10. Here, up of the fuel. Compression ratio varies from 16 to 20. Here, ignition engines are high-speed engines due to their lightweight and homogeneous combustion, whereas compressed ignition engines are low-speed engines due to their heavy weight ratio. Maximum value of thermal efficiency is lower in spark ignition engines, whereas due to higher compression ratio, maximum value of thermal efficiency is higher in compressed ignition engines. और पेट्रोल की कितनी है? Spark is higher in compressed ignition engines. एक मिनट, CI जो है इसकी हायर है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिए वेट इसका देखें. Due to lower peak pressures, लाइटर इन वेट है. whereas compressed ignition engines are अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बस ये खत्म हो गई. अब आप क्या बता रहे थे हसन? टू स्ट्रोक इंजन है, स्पोर्ट्स कार में है, वहां पावर ज्यादा चाहिए, ठीक. ये थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम का फिनोमेना दिया हुआ है इसने. कूलिंग का पूरा सा थोड़ा सा फिनोमेना समझाया हुआ है. ये देखें, वाटर आया, ये सब समझाया मुझे जरा क्या हो रहा है भाई. ये सर्च टैंक है, ऐसे ही है, यहाँ से वाटर आया, ये पंप्स के थ्रू ये सिलेंडर में गया, सिलेंडर से वापस. ये क्या चीज है? हाँ, ये इसको कूलिंग, ये सर्च टैंक कह लें या कूलिंग टावर वाला जो कंसेप्ट है वो कह लें, और हीट एक्सचेंज है. ये फिनोमेना है. अच्छा, उसके बाद डीजल इंजन कूलिंग सिस्टम का थोड़ा सा फिनोमेना और भी है. The learning objectives of this chapter are: it is connected to, is then used to do work. The work may be done in turning a propeller to drive a ship or to drive an electrical generator to provide electrical power. The energy conversion process involves combustion of the fuel within the engine cylinder. During combustion, heat is released and pressure is generated, forcing components to with or viscosity of the lubricating oil, resulting in metal-to-metal contact between components due to cooling fan unit. Direct air lubricating oil. इसके अंदर कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, ये देखिए, ये प्रोसेस वो बता रहा है कि
carrying capacity will reduce and it can no longer keep the moving surfaces apart. This will lead to further heating and deterioration of the oil. It is therefore necessary to cool the lubricating oil to maintain its performance and condition. In small engines, the hot oil transfers heat to minimize flow resistance in the cooling system. In this, although air is available in the marine environment, although air is plentiful, it has a relatively low specific heat capacity, approximately 1.0 kilojoules per kilogram Kelvin. The low density of air would require that large volumes would need to be supplied to take away the heat from the various diesel engine systems. Air can, however, be used as a coolant through the external kilojoules per kilogram Kelvin synthetic increases with operating temperature, which limits the use of gale formation. Closed comparison among the various coolant. ये वाली जो है ना, एयर की आप देखें, एयर ऑयल कूलिंग, सी वाटर और फ्रेश वाटर, ये है। अब इसमें देखिए कॉस्ट है, कॉस्ट का अंदाजा हो रहा है, सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑयल की है और सबसे कम किसकी है? एयर की है। रेडिली अवेलेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा बताएं इनमें से कौन सा है रेडिली अवेलेबल? एयर है, प्लेंटीफुल। हाँ, और सबसे कम कौन सा है? एयर और सी वाटर ज्यादा है, ठीक है। सबसे कम कौन सा है? दोनों दूसरे। अच्छा, स्केल फॉर्मिंग क्या है? हेविली स्केल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। स्केल फॉर्मिंग क्या होती है वैसे? ये वही तो नहीं है जो पार्ट्स को डैमेज करता है, ऐसी है ना? ओवर हीटिंग कैन रिजल्ट इन कार्बन डिपॉजिट्स। ये कार्बन डिपॉजिट्स से होंगे ऑयल के। एयर की मिनिमम है, कैन डिपॉजिट हैवी स्केल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, सी वाटर। मिनिमल डिपेंडिंग ऑन प्योरिटी, फ्रेश वाटर। क्रूजन का बताएं जरा। अगर एयर में वाटर होगा, वाटर कंटेंट होगा तो क्यों करेगा? नॉट यूजुअली बट कैन बिकम एसिडिक इफ ऑक्सीडाइज्ड। ऑयल अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, इसलिए ऑयल होगा तो आप उसको बिल्कुल वैक्यूम, उसके अंदर एयर वो नहीं मिक्स होने देते। कैन बी हाईली क्रोसिव, सी वाटर जो है नॉर्मली ट्रीटेड विद इनवर्ट। ये वाटर को ट्रीट करते हैं, कौन सा होता है प्लांट हसन? जो वाटर को पहले, जो वाटर है उसको पहले प्लांट से ट्रीट करते हैं, उसके बाद वाटर यूज करते हैं। क्या नाम उसका? ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ठीक है, उससे हम करते हैं ऑस्मोसिस। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें इसकी क्या है? सबसे ज्यादा हाई है इनकी और एयर की सबसे कम है। विस्कोसिटी देखें, सबसे कम है एयर की और बाकी की। That are available in the marine environment. The items which will be affected most are to friction. It is worth noting that need to be cooled as the including exhaust valve must arrange using a sub water-cooled cooling before entering the separate to the all systems. We shall have a deep. ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें बस बाकी ठीक है, बाकी इसको हम जो है वो बस ठीक है, ओके।